Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology, and today we are going to do chapter number 31 from Guyton, which is an extremely super duper important chapter, एसिड बेस रेगुलेशन. भाई मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, बिकॉज आपके पूरे मेडिकल कैरियर में I mean, if you are doing emergency, if you are doing internal med, if you are doing pediatrics, gynae, understanding of acid-base regulation is the pivotal concept. और मेडिसिन के अंदर इसकी इतनी importance है कि आपको अपने कैरियर के साथ realize होगा कि how important this lecture is going to be. So please pay attention to this chapter with full concentration, as I am emphasizing again and again कि this is going to be a very important chapter. ठीक है? So start करते हैं. The regulation of hydrogen ion balance is similar in some ways to regulation of other ions in the body. So आपकी बॉडी को सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन को रेगुलेट नहीं करना. Obviously it is regulating a lot of other ions such as the sodium ion, such as calcium, such as potassium, such as phosphate. इन सब की रेगुलेशन हमने डिस्कस की हुई है. हाइड्रोजन आयन की रेगुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द पीएच ऑफ द बॉडी. और ब्लड में अगर हम बात करें तो द नॉर्मल पीएच इज 7.4 और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से इसका सारा लिंक है. और ये पीएच नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी है ताकि सारे जो नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस हैं वो चलते रहें. ठीक है? सो बिल्कुल ऐसी ही बात ट्रू है फॉर सोडियम. सोडियम का एक फिक्स नॉर्मल लेवल होना चाहिए ताकि सारे जो सोडियम के एसोसिएटेड फंक्शंस हैं वो नॉर्मल रहें. कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में भी इसकी नॉर्मल रेंज इंपॉर्टेंट है. तो किडनी ये सारे काम कर रही होती है. सो किडनी इज ऑल्सो गोइंग टू बैलेंस द हाइड्रोजन आयन. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द इनटेक एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड नेट रिमूवल of hydrogen ion ताकि ये एक particular pH maintain रहे. And as is true for other ions, the kidneys play an important role in regulating hydrogen ion removal from the body. However, precise control of extracellular fluid hydrogen ion concentration involves more than kidneys. So hydrogen ion की homeostasis में it's not only the kidneys that are involved. There are several other processes involved. So for example, respiratory system is involved. For example, blood में कुछ chemicals हैं which are very very important in regulation of hydrogen ion. So hydrogen ion की जो concentration है, it's not only regulated by the kidney. Okay, in this chapter we are going to consider the mechanisms that regulate hydrogen ion concentration with a special emphasis on renal hydrogen secretion, renal absorption of hydrogen, production of hydrogen ion, excretion of bicarbonate. So all this is going to be covered under this heading of acid base regulation. So आइए start करते हैं the first heading. Hydrogen ion concentration is precisely regulated. मैंने जिस तरह अभी ऊपर आपको बताया कि इसकी concentration बहुत ही narrow limits में maintain रखी जाती है ताकि जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो नॉर्मल होते रहें. सो प्रिसाइज हाइड्रोजन आयन रेगुलेशन इज एसेंशियल बिकॉज द एक्टिविटीज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम सिस्टम्स इन द बॉडी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. देयरफॉर चेंजेस इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन alter virtually all cell and body functions. So this is very important to maintain its normal limits. Compared with other ions, hydrogen ion concentration of the body fluids is normally kept at a very very low level. For example, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 142 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें सो हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट्स अबाउट 3.5 मिलियन टाइम्स लेस एज कंपेयर टू द सोडियम कॉन्सेंट्रेशन विच इज ओनली 0.00004 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. सो कहाँ 142 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, कहाँ इतना ज्यादा 0.0004 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. सो इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी लो एज कंपेयर टू सोडियम. Equally important, the normal variation in the hydrogen ion concentration in extracellular fluid is only about 1 millionth as great as the normal variation in the sodium ion. जब हम सोडियम आयन की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं तो हम मेंशन करते हैं कि 5 मिली इक्विवेलेंट्स इधर 5 मिली इक्विवेलेंट्स उधर इज नो प्रॉब्लम. बल्कि बाज बुक्स में तो आपको 10 मिली इक्विवेलेंट्स इधर और 10 मिली इक्विवेलेंट्स उधर तक का भी जिक्र मिलेगा. लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इसमें जो वेरिएशन है इट इज अबाउट अ मिलियन टाइम less as compared to the sodium ion वेरिएशन इन द नॉर्मल रेंज. पर्पस इसका ये है कि अगर थोड़ी सी भी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, एक तो ऑलरेडी ये इतना कम है बॉडी में और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन में माइनर चेंजेस भी आते हैं तो पीएच में जो चेंजेस आते हैं दे आर इनफ टू कॉज सेलुलर डिस्टर्बेंसेस. इसीलिए हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ही नैरो लिमिट में मेंटेन रखना बहुत जरूरी है. दस द प्रिसीजन विद विच हाइड्रोजन आयन इज रेगुलेटेड
emphasizes its importance to the various cell functions. Very important ion. Okay, अभी इस चैप्टर में आपको अंदाजा होगा. Now the next heading is acids and bases, their definition and meaning. मुझसे अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर एसिड की सिंपल डेफिनेशन एक्चुअली है क्या और बेस किसको बोलते हैं. सो बेसिक चीज समझाता हूं. ये चैप्टर जो है ना बेसिकली इट्स गोइंग टू बी एन इजी चैप्टर अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप अच्छी हो जाए. फिर पूरा चैप्टर एक्चुअली एक फिलॉसफी की तरह है. तो फिजियोलॉजी बेसिकली अगर आपको बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाइड हैं और अच्छे से समझ में आ गए देन द रेस्ट बिकम्स अ फिलोसॉफिकल गेम. तो पहली चीज तो ये समझनी है कि एसिड किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं. आइए देखते हैं. अ हाइड्रोजन आयन इज अ सिंगल फ्री प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम. अब हाइड्रोजन एटम अपने आपने हाई स्कूल्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन ऑर्बिट, और अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए देन वी आर लेफ्ट विद ओनली द प्रोटॉन व्हिच इज द पॉजिटिव साइज पॉजिटिव चार्ज, एंड देन देयरफॉर फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम इफ यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन दिस इज व्हाट इज रिमेनिंग. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो निकल गया तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रह गया. सो हाइड्रोजन आयन इज अ सिंगल फ्री प्रोटॉन. इट्स ओनली one proton when the electron is removed. Molecules containing hydrogen atoms that can release hydrogen ion in a solution are referred to as acids. Now here is the most basic and primary concept for this chapter that you have to understand. How do we define acids? देखो भाई acid हर वो चीज है जो किसी भी solution में क्या चीज कंट्रीब्यूट कर सके, क्या चीज रिलीज कर सके, हाइड्रोजन आयन. हर वो चीज जिसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो सकता है उस चीज को बोलते हैं एसिड. अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं. सो फॉर एग्जांपल HCl, इसको जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो इट हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड ऑब्वियसली द क्लोराइड आयन एज वेल. लेकिन मैंने क्या कहा, हर वो चीज जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सके उसको बोलते हैं एसिड. तो इस केस में ये हाइड्रोजन आयन किसने प्रोड्यूस किया है, HCl ने, तो ये बन गया एसिड. बात आती समझ में. बिल्कुल इसी तरह ये है जनाब कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये जब वाटर में डिसॉल्व होता है यानी सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, सो इसमें से रिलीज होता है हाइड्रोजन आयन और साथ में ऑब्वियसली बाइकार्बोनेट भी बनता है. बट फिर वही बात, अगर हाइड्रोजन आयन रिलीज हो, किसने रिलीज किया, इसने रिलीज किया, तो ये चीज क्या कहलाएगी, एसिड. सो एसिड हर वो चीज है जिसमें से हाइड्रोजन आयन निकल सकता है और सॉल्यूशन में एंटर हो सकता है. यानी ये इस तरह मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि देखो ये कौन है, ये मैं हूं, दिस इज आसिफ. आसिफ में अगर H लगा दूं तो आसिफ में से भी हाइड्रोजन आयन रिलीज हो सकता है. तो इस सिचुएशन में आसिफ क्या बन जाएगा, एसिड. हर वो चीज जिससे हाइड्रोजन आयन निकल सकता है उसे नाम देते हैं एसिड. ठीक है. एन एग्जांपल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्योंकि इसमें H है. देन अनदर एग्जांपल इज कार्बोनिक एसिड जिसमें H है और ये रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्ब. अभी जो एग्जांपल्स मैंने ऊपर आपको समझाई. सो ये है वेरी वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन एसिड. अब अगर आपसे पूछूं व्हाट इज अ बेस, तो भाई बेस बड़ी आसान चीज है. हर वो चीज जो हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर उसे कहते हैं बेस. सो फॉर एग्जांपल दिस इज बाइकार्बोनेट आयन HCO3. ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट कर सकता है यानी हाइड्रोजन आयन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है या हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट कर सकता है और साथ में ये बना देगा फिर H2CO3 कार्बोनिक एसिड. सो चूंकि ये चीज हाइड्रोजन आयन को ले सकती है इस चीज को हम नाम देंगे बेस. सो अ बेस इज एन आयन और मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट एन हाइड्रोजन आयन. फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट, दिस इज द बेस बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन. बिल्कुल इसी तरह HPO4, this is फॉस्फेट और इसके साथ हाइपरफॉस्फेट बेसिकली, और इसके साथ हाइड्रोजन आयन, ये नेगेटिव चार्ज है तो इट कैन एक्चुअली गेट हाइड्रोजन आयन. ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट विल मेक H2PO4. सो दिस इज ऑल्सो HPO4 इज ऑल्सो अ बेस. एनीथिंग विच एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन आयन. आपके ब्लड में दीज आर द रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन ऑल्सो हैज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, और अगर हीमोग्लोबिन में भी हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट हो रहा है तो हीमोग्लोबिन क्या चीज होगी, इट्स ऑल्सो अ बेस. सो बेस हर वो चीज है जिसमें हाइड्रोजन आयन एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है जनाब, यहां तक ये बात समझ में आ गई. प्रोटीन्स इन द बॉडी कैन ऑल्सो एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन सच एज हीमोग्लोबिन की एग्जांपल मैंने आपको दी. नाउ द टर्म बेस एंड अल्कली आर ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली. अक्सर हम वर्ड बेस की जगह अल्कली और अल्कली की जगह बेस यूज कर रहे होते हैं, बट देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस. एंड अल्कली इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर अल्कलाइन मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. सो फॉर एग्जांपल NaOH
H, इसमें चूंकि ये अल्कलाइन मेटल मौजूद है, सो दिस इज नोन एज एन अल्कली. क्या नाम देते हैं इसको हम? alkali. And this is highly basic because it produces OH ion, and OH ion has the capacity to absorb hydrogen ion, so that's a very strong base. The base portion of these molecules react quickly with the hydrogen ion to remove it. यानी मैं NaOH की example दे रहा हूँ ना आपको. So NaOH, this is an alkali. इसमें actually base portion क्या है? यानी अगर NaOH की मैं composition देखूँ तो इसमें एक सोडियम आयन है और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन है. So ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये एक्चुअली हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. तो यही उसको एक्सेप्ट करेगा ना, ये सोडियम तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव को एक्सेप्ट नहीं करता. सो ये है बेस पोर्शन ऑफ दिस अल्कली. यानी अल्कली वो बेसिस हैं जिसमें कोई अल्कलाइन मेटल मौजूद है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम. इसी तरह एक और एग्जांपल अगर आपको दूं तो KOH इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसके दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? पोटेशियम और दूसरा पार्ट है हाइड्रोक्सिल आयन. तो इन दोनों में से बेस कौन होगा? हाइड्रोक्सिल आयन, बिकॉज दिस विल एब्सॉर्ब एंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म वाटर. सो द बेस पोर्शन इज द पोर्शन which actually accept hydrogen ion. Okay, for similar reason, term alkalosis refers to excess removal of hydrogen from the body fluids. In contrast, excess addition of hydrogen is known as acidosis. अब ये दो नई टर्मिनोलॉजीज में थ्रो कर रहा हूँ, और अगेन ये मैं इस पे टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, ताकि आपको ये इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो एक दफा पल्ले पड़ जाए, इस तरह कि पूरा चैप्टर आपको एक मजेदार कहानी लगे. सो दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और मेडिसिन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एसिडोसिस एंड द अदर टर्मिनोलॉजी इज अल्कलोसिस. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, हम इसकी मजीद कॉम्प्लिकेशंस में भी आज डाइव करेंगे, लेकिन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एसिडोसिस का मतलब ये है अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए किसी भी सॉल्यूशन में तो हम कहते हैं जनाब एसिडोसिस हो गई. और अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए किसी सॉल्यूशन में, यानी इस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लिया जाए बेसिस के साथ, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं अल्कलोसिस. सो अल्कलोसिस रेफर्स टू एज एक्सेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन. अगर हाइड्रोजन आयन निकल जाए सिस्टम में से, अल्कलोसिस. अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए सिस्टम में, ऐड हो जाए, तो एसिडोसिस. ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजी है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखें कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं, जैसे HCl है. HCl फॉरन डिसोसिएट होता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन विद अ वेरी ग्रेट फोर्स, यानी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन निकलती है. इसको अगर कंपेयर करें H2CO3 के साथ, है तो ये भी एसिड, लेकिन इसका डिसोसिएशन रेट बहुत ही कम है. थोड़ा हाइड्रोजन निकलेगा, थोड़ा बाइकार्ब निकलेगा. सो इट्स अ वीक एसिड. So a strong acid is something which immediately releases whatever hydrogen it has. A strong acid such as HCl rapidly dissociate and release especially large amount of hydrogen. Weak acids such as carbonic acid are less likely to dissociate and therefore they release small amounts of hydrogen ion. Okay. इसी तरह strong base है. Base वो है which readily combines and accept hydrogen, though that will be strong base such as sodium hydroxide. And a weak base such as bicarbonate will accept hydrogen ion but very slowly. Okay, now normal hydrogen ion concentration and pH of the body fluids and changes that occur during acidosis and alkalosis. Very important paragraph. The blood hydrogen ion concentration is normally maintained with very tight limit around a normal value of 0.0004 milliequivalents per liter. We also can call it 40 nano equivalents. So milliequivalents में 0.00004 और nano equivalents में 40. Normal variations are only about 3 to 5 nano equivalents, a very short range. So if this is normal, it can go light here and slide there, not more than that. Okay, under extreme conditions, however, the body concentrations of hydrogen ion can change, but that will be disease conditions, acidosis or alkalosis. Because hydrogen ion concentrations normally is very low, and because these small numbers are cumbersome to remember and to do the mathematics and do the medical calculations, it is usually not expressed only in hydrogen ion concentration, but another
variety is also used to depict the hydrogen ion concentration, and that is the pH. और अगर इस कैलकुलेशन के साथ चलें जो कि 0.00004 मिली इक्विवेलेंट है या 40 नैनो इक्विवेलेंट है, then the pH का फॉर्मूला है log upon the concentration of hydrogen ion या negative log of hydrogen ion concentration. And I'm not going into the complicated details, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अपने कॉलेज में, but the normal hydrogen ion concentration which is 40 nano equivalents, और अगर मिली इक्विवेलेंट में बात करूं then you know the milli equivalent number is this. इसका pH अगर कैलकुलेट करें तो it comes out to be 7.4. So that's the normal pH and that's 40 nano equivalent या 0.00004 milli equivalent is the normal concentration. So this is the normal pH. अब ये जो normal pH है इसमें आपको एक चीज अब समझनी है. This is a very important concept coming up. So listen to this very carefully. Now you know what is the normal concentration of hydrogen ion, you know what is the normal pH. Now if the hydrogen ion concentration increases, so if we have more and more and more hydrogen ion concentration, what will happen to the pH? pH will decrease, and this is known as acidosis. So acidosis, ये तीन आपने चीजें याद रखनी है. Acidosis का मतलब है more hydrogen ion concentration, more hydrogen ion concentration का मतलब reduce pH. ये बहुत प्राइमरी कॉन्सेप्ट है. आगे जो ये पूरा चैप्टर पढ़ूंगा और मेडिसिन में जब ये चीजें पढ़ाऊंगा एसिडोसिस और अल्कलोसिस, तो ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आए तो वो आगे बात समझ में नहीं आएगी. तो ये तीनों पता होना चाहिए कि एसिडोसिस का मतलब क्या. एसिडोसिस का मतलब more hydrogen ion, more hydrogen ion का मतलब क्या, less pH. Okay, right. And the opposite is true as well. So if we talk about alkalosis, alkalosis means less hydrogen ion, and less hydrogen ion means more pH. So this is kind of inversely related. Okay, for this formula one can see that the pH is inversely related to hydrogen ion concentration. यही बात मैंने आपको यहाँ बताई कि अगर more hydrogen ion है तो pH less होगी, अगर less hydrogen ion है तो pH more होगी. So they are in an inverse relation. The normal pH of the arterial blood is 7.4, whereas the pH of the venous blood and the interstitial fluid is 7.3. So 7.3 is obviously lower than 7.4, which means it is slightly acidic, है ना. और ये एसिडिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा. सो वेनस ब्लड में देयर इज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन. उसका रीजन है, रीजन ये है कि आपके टिश्यूज में हर वक्त क्या बन रहा होता है. टिश्यूज में एक्चुअली बहुत कुछ बन रहा होता है, बट वन थिंग विच द सेल्स आर प्रोड्यूसिंग ऑल द टाइम इज कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपका सेल है, ये एक सेल है, उस सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है. ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली किसके साथ कंबाइन होगी, वाटर के साथ कंबाइन होगी. एंड व्हाट विल इट प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड. और ये कार्बोनिक एसिड किस में डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन में और प्लस 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 बाय कार्बोनेट आयन. सो ये जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो इसकी वजह से, इस कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से, क्योंकि सेल में से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो वेनस एंड पर अब ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देता हूं. वेनस एंड पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज्यादा कार्बोनिक एसिड होगा, ज्यादा कार्बोनिक एसिड होगा तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा तो पीएच कम होगी, एसिडोसिस. ओके, सो इफ दीज आर द सेल्स and this is the artery, then the arteriole, then the capillaries, then the venuole and then the vein. तो ये सिस्टम है, ठीक है. ये आर्टेरियल साइड है और ये वेनस साइड है. तो आर्टेरियल साइड पे ब्लड की पीएच कितनी है, 7.4. लेकिन जब यहाँ सेल्स के पास से, ये सारे सेल्स हैं, सेल्स के पास से जब ये ब्लड गुजरेगा तो सेल में क्या चीज बन रही है, मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड. और इसे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अल्टीमेटली हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. जब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पीएच थोड़ी सी कम हो जाएगी, 7.3. सो हम कहते हैं कि वेनस साइड का जो ब्लड है इट इज अ लिटिल एसिडोरिक एज कंपेयर्ड टू द आर्टेरियल ब्लड. ठीक है, बिकॉज द नॉर्मल पीएच ऑफ द आर्टेरियल ब्लड इज 7.4. अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू हैव एसिडीमिया व्हेन द पीएच फॉल्स सिग्निफिकेंटली बिलो, और इफ इट गोज सिग्निफिकेंटली हायर देन नॉर्मल पीएच देन इट इज कॉल्ड अल्कलीमिया या एसिडोसिस या अल्कलोसिस. ये दो टर्म्स यूज करते हैं. नाउ इंट्रासेलुलर पीएच यूजुअली स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ द प्लाज्मा पीएच बिकॉज द सेल मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस एसिड्स. जितना ज्यादा एसिड बनेगा जैसे कि कार्बोनिक एसिड, उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना कम क्या होगी, पीएच. तो ये जो आपको थ्योरी है ना, ये वाली, ये तो याद ही रखनी है कि अगर हाइड्रोजन आयन कम हो रहा है तो पीएच बढ़ रहा है, इसको अल्कलोसिस कहते हैं. अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है तो पीएच कम हो रहा है, उसको एसिडोसिस कहते हैं. ठीक है, ये भूलनी नहीं है बात.
Now, the pH of the urine can have a different range from 4.5 to 8 depending upon कि body में acid base का status क्या है. So, if the body is having a lot of acids, then the urine will be acidic urine ताकि वो acid urine में release कर दिया जा सके. ठीक है, ये एक टेबल बहुत अच्छा सा टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यू कैन हैव एन आइडिया कि हाउ द हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली इनवर्सली रिलेटेड टू द pH. So see here, for example, this is the normal pH and this is the normal hydrogen ion concentration. Now, if the pH is low, the concentration of hydrogen ion is high, see 4.5 as compared to 4. If the pH is further low, for example 4.5 हो गई pH, या इससे भी कम, this is a very low pH. It means कि the hydrogen ion concentration will be very high, and this happens in gastric acid because gastric environment में there is a very strong acid. This is being produced by the specialized cells in the stomach, और ये चूंकि directly HCl produce कर रहे हैं, so imagine how much high concentration of hydrogen ion, because HCl है तो ये dissociate हो जाएगा hydrogen ion में. So more and more hydrogen ion, less and less is the pH. You see, strongly acidic pH. It's a very good table to demonstrate कि pH and hydrogen ion concentration are inversely related. Okay, right. So this is all done and dusted. Let's move on to the next paragraph, which says that an extreme example of an acidic body fluid is HCl, which is in the stomach by the parietal cell. ये बात हम actually कर चुके हैं, ठीक है? And the pH of the gastric juice is therefore very low, very acidic, which means very high concentration of hydrogen ions. All right. Now, defending against the changes in the hydrogen ion concentration, तीन चीजें हैं जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी अगर चेंज होता है, यानी अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं बॉडी में या किसी वजह से एसिड बेस डिस्टर्बेंस है, सो तीन मैकेनिज्म्स हैं आपकी बॉडी में जो हाइड्रोजन को बैक टू नॉर्मल लेके आएंगे. पहला मैकेनिज्म है सम बफर्स विच आर केमिकल बफर्स, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में. ये सेल के बाहर भी हो सकते हैं विच आर एक्स्ट्रासेलुलर बफर, सेल के अंदर भी हो सकते हैं विच आर इंट्रासेलुलर बफर्स. द सेकंड सिस्टम विच इज इंपॉर्टेंट इज लंग्स एंड द थर्ड one is the kidney. So I told you kidney is not the only thing which control hydrogen ion concentration. There are so many other things, lungs and kidneys as well. So there are three systems. There is a chemical system, there is a respiratory system and there is a kidney system. ये सब अभी हम one by one पढ़ेंगे. When there is a change in hydrogen ion concentration in the body, the buffer systems of the body fluid react within seconds to minimize these changes. Buffer system do not eliminate hydrogen ion or add hydrogen ion to the body, but they only get them utilized ताकि जो हाइड्रोजन का बैलेंस है हो रहा है. ये क्या मतलब, वो अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में. फिर द सेकंड लाइन ऑफ सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो फास्टेस्ट सिस्टम है वो एक्चुअली केमिकल बफर सिस्टम है. इट रिस्पॉन्ड्स वेरी क्विकली. तो अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में चेंज हो रही है तो दिस सिस्टम, द केमिकल बफर सिस्टम, अभी बताता हूँ कौन कौन से होते हैं वो, it changes rapidly. Then next speed up जो होता है, gear up होता है सिस्टम, वो respiratory center है. और लास्ट में सबसे slowest to come into the picture are the kidneys. Okay, और अभी हम one by one एक का डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि how does the buffer chemicals work in the body, how does the respiratory system work, and then how does the renal system work. Okay, now buffering of the hydrogen ion in the body fluids. A buffer is any substance that can reversibly bind with the hydrogen ion. The general form of the buffer is looking like this. So if there is a buffer which is basically a base, so base का मतलब ये है कि it is accepting hydrogen ion, so it will ultimately be a base. It's a buffer plus hydrogen ion. तो ये चीज बन गई. तो इसने क्या किया बेसिकली, इसने हाइड्रोजन आयन को अपने अंदर जम कर लिया, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर अटैच कर लिया और ये चीज बना दी. तो हाइड्रोजन आयन का जो इफेक्ट था वो खत्म हो गया. ये एसिड है ना, अगर इसको ऐसे खुला छोड़ देंगे बॉडी में, बॉडी फ्लूइड्स में, तो इट विल ऑब्वियसली हैव सम डेलेटेरियस इफेक्ट्स, कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा. तो इसको बांध के रख दिया जाता है, इसको बांध दिया जाता है किस चीज के साथ, बफर के साथ. इन दिस एग्जांपल अ फ्री हाइड्रोजन आयन कंबाइंस विद द बफर टू फॉर्म द वीक एसिड. अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि ये एसिड बन गया तो ये बात कितनी समझ में आ रही है? ये पूरी समझ में आनी चाहिए यार, क्योंकि एसिड हर वो चीज है जो हाइड्रोजन आयन कंट्रीब्यूट कर सके, और अब इसके पास हाइड्रोजन आयन आ गया ना, तो अब ये बफर नहीं कहलाएगा, अब ये एसिड कहलाएगा. सो इट इज नाउ नोन एज द वीक एसिड. And that can either remain as an undissociated या unassociated molecule or dissociate back to the buffer system. So it's a reversible reaction. It can go back like this. Okay. When hydrogen ion concentration increases, now comes the real story. अगर hydrogen ion concentration बढ़ेगी, if it increases, more hydrogen will bind to the buffer,
एज लॉन्ग एज द बफर इज अवेलेबल, लेकिन जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन पूरी हो जाएगी तब मजीद हाइड्रोजन आयन नहीं बाइंड करेगा. कन्वर्सली व्हेन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज द रिएक्शन शिफ्टेड्स बैक इन दिस डायरेक्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्ट्रीब्यूट हो सके सिस्टम में. सो ये बड़ा मजेदार सिस्टम है. अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसको ऐसे बढ़ते छोड़ा नहीं जाता बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच कम हो जाएगी. पीएच कम हो जाएगी तो नॉर्मल बॉडी के सिस्टम्स डिस्टर्ब होंगे. तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने को फौरन कंट्रोल करना होगा, और इसे कंट्रोल ऐसे किया जाता है कि ये जो बढ़े हुए हाइड्रोजन है ये बफर के साथ बांध दिए जाते हैं और ये एसिड बन जाता है. अब अगर सपोज सिनेरियो ऐसा है कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, कम होने का मतलब ये है कि पीएच क्या हो जाएगी, पीएच बढ़ जाएगी, अल्कलोटिक मामला हो जाएगा. अब पीएच बढ़ने भी नहीं देनी, तो फिर क्या करते हैं कि ये जो वीक एसिड्स हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन बनना, यानी जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो तो उन्हें गायब किया जाता है, जब हाइड्रोजन आयन कम हो तो उन्हें हाजिर कर दिया जाता है. व्हाट एन इंटरेस्टिंग सिस्टम इन द बॉडी. द इंपॉर्टेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बफर कैन क्विकली बी रियलाइज्ड इफ वन कंसीडर्स द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द बॉडी. About 80 milliequivalents of hydrogen ion ingested or produced each day by the body. 80 मिली इक्विवेलेंट बड़ा अमाउंट है. ये रोजाना बॉडी में या बनता है या हम इंजेस्ट करते हैं. कोक शोक पीते हो, चीजें खाते पीते हो तो एसिड आ रहा है ना बॉडी के अंदर. अब इस इतने ज्यादा हैवी अमाउंट को हमें अल्टीमेटली इस छोटे से अमाउंट पे लेके जाना है, तो जाहिर है ये हाइड्रोजन एक्सक्रीट करनी पड़ेगी बॉडी से, इसको बफर करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को गायब करना है. तो वो गायब करने का सारा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है. विदाउट बफरिंग, अगर ये बफरिंग नहीं होती तो इतना ज्यादा आप हाइड्रोजन आयन ले रहे हो रोजाना डाइट में या बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ती जाती यार बॉडी के अंदर. वो बढ़ती जाती तो पीएच कम होती जाती, पीएच कम होती जाती तो एसिडिक एनवायरनमेंट बनता जाता. मरना है क्या यार, एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं बनने दो. The action of the acid-based buffers can perhaps be best explained by considering the buffer system, which is भी हम करेंगे, different buffer systems discuss करेंगे. So, for example, we will start off by talking about the bicarbonate buffer system. How does it work? But अब तक की सारी बात समझ में आ रही है? It's all very important. अच्छा, रोक रोक के वीडियो को भाई रिवाइंड कर करके देखो अगर समझ में नहीं आता. तो अब कुछ बफर सिस्टम, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन की जो मेंटेनेंस है बॉडी में वो 3 सिस्टम से कंट्रोल हो रही है. पहला सिस्टम था केमिकल बफर सिस्टम, दूसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम और तीसरा सिस्टम है रीनल सिस्टम. सो हम अभी इस वक्त बफर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और बफर सिस्टम में अभी पहला बफर आया विच इज कॉल्ड द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ कपल ऑफ थिंग्स. इसके 2 इंग्रेडिएंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है इसका कार्बोनिक एसिड विच इज अ वीक एसिड, and then the other component number 2 is a bicarbonate salt which is the sodium bicarbonate salt. जरा गौर से इसको समझो. कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द बॉडी. ये रिएक्शन मस्ट रिमेंबर रिएक्शन है, बॉडी में कई जगहों पे हो रहा होता है, लंग्स में भी होता है, किडनी में भी होता है, ब्लड में भी होता है, सेल्स के अंदर भी होता है. सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन रिएक्ट विद वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड. अब ये कार्बोनिक एसिड जो है इसमें हाइड्रोजन आयन है देने के लिए, सो इट गिव्स लाइक हाइड्रोजन आयन एंड द अदर वन इज द बाइकार्बोनेट आयन. सो ये एक हाइड्रोजन आयन दे रहा है. हर वो चीज जो हाइड्रोजन आयन देती है उसको हम क्या नाम देते हैं, एसिड. सो द कार्बोनिक एसिड इज एन एसिड. ओके, दिस रिएक्शन इज स्लो, लेकिन अगर ये एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज काम कर रहा हो तो ये एक्टिविटी काफी फास्ट हो जाती है. ठीक है, दिस एंजाइम इज स्पेशली अबंडेंट इन द वॉल्स of the lung alveoli where carbon dioxide is released. Carbonic anhydrase is also present in the epithelial cells of the renal tubule and also inside the cells. Carbonic acid ionizes weakly to form hydrogen ion and bicarbonate ion. जो मैंने यहाँ आपको बात समझाई कि ये जो कार्बोनिक एसिड बना है it can convert into hydrogen ion and because it gives hydrogen ion it is also known as acid. ये बार बार मैं कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूँ. The second component of the system, so the first component is carbonic acid and now the second component of the system is the bicarbonate salt. This occurs predominantly as the sodium bicarbonate in the extracellular fluid. Sodium bicarbonate ionizes almost completely to form the bicarbonate and sodium. See, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू सोडियम आयन, तो ये इसका सोडियम आयन है और यहाँ से बाइकार्ब अलग हो गया, बाइकार्बोनेट. ये बाइकार्बोनेट जो अलग हुआ है, ये बाइकार्बोनेट क्या है, एसिड है या बेस है? इट्स अ बेस बिकॉज इट कैन एक्चुअली एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन. सो एनीथिंग विच एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन इज अ बेस. अब इस पूरे सिनेरियो को अगर हम कंबाइंड स्टडी करें, सो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या चीज बनेगी, कार्बोनिक एसिड. दिस कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड. ओके, और ये डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में. बाइकार्बोनेट इज अ बेस एंड व्हेन इट कंबाइंस विद सोडियम इट प्रोड्यूसेस सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ द वीक एसिड डिसोसिएशन हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सट्रीमली लो. हमें पता है कि वीक एसिड है तो कम से कम हाइड्रोजन निकलता है. अब सुने, नाउ इज कमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हेन a strong acid such as HCl is added to the bicarbonate buffer solution,
the increased hydrogen ion released from the HCl is buffered by the bicarbonate. सुनो भाई, ये मजे की चीज आ गई. अब इस पूरे इक्वेशन में, ये जो पूरी इक्वेशन यहां हमने अभी डिस्कस की थी, सपोज ये एक बीकर के अंदर ये सारा रिएक्शन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब चीजें हो रही हैं. इस बीकर में मैं डाल देता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब ये है कि वी विल गेट मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयन. अब जब ये मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयन आएंगे तो दे विल कंबाइन एंड दे विल बी एक्सेप्टेड बाय द बाइकार्बोनेट. सो दिस इज हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग. इंक्रीज हाइड्रोजन आयन इज एक्सेप्टेड बाय बाइकार्बोनेट एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड. ये दोनों मिलकर यही बनाते हैं ना. एंड एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड. सो एज अ रिजल्ट more carbonic acid is formed, causing increased carbon dioxide and hydrogen and water production. From these reactions, one can see that hydrogen ion from the strong acid reacts with bicarbonate to form very weak acid. ये बड़ी प्यारी लाइन है. ये स्टेटमेंट मुझे बहुत जबरदस्त लगता है और उसको मैं अब आसान जबान में आपके सामने रखना जा रहा हूं. देखो, मैंने आपको बताया ना, ये पूरा बीकर है, उसके अंदर ये बफर सिस्टम मौजूद है. इस बफर सिस्टम का नाम क्या है? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम. अब ये जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, ये क्या करता है? देखें, बफर सिस्टम का काम ये होता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड सिस्टम में ऐड हो जाए तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जाहिर है बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा. लेकिन इस बफर सिस्टम ने ब्यूटीफुली क्या किया? इस बफर सिस्टम ने इस स्ट्रॉन्ग एसिड को यानी HCl को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर दिया? यहां इस हाइड्रोजन को कौन एब्जॉर्ब करेगा? बाइकार्बोनेट. और क्या चीज बनेगी? कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड क्या है? वीक एसिड. सो आपने डाला स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड अब कन्वर्ट हो गया काइंड ऑफ इनटू वीक एसिड. यानी हाइड्रोजन आयन की जो इंक्रीमेंट का इफेक्ट था वो तो वीक पड़ गया ना, वो खत्म हो गया. ये हाइड्रोजन आयन अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे. HCl के डालने से ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई थी, लेकिन इस बढ़ी हुई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को किसने हैंडल कर लिया? बाइकार्बोनेट ने, और एक वीक एसिड बना दिया. तो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बन गया? वीक एसिड. और ये वीक एसिड भी फिर ऐसे रहेगा नहीं. इट कैन डिसोसिएट बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. तो कहानी खत्म. तो आपने जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था HCl, उसका सारा इफेक्ट हवा बन के उड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया, है ना. कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ इसका. सो वीक एसिड में कन्वर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इन टर्न फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटली स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेशन. और एक्सपायरेशन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहते हैं ना, चल पड़े हैं फिक्र यारा छल्ले में, क्या उसमें उड़ा के, धुएं में उड़ा के. तो ये धुएं में उड़ा के जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका इफेक्ट मिनिमाइज कर दिया. क्यों? ये सब किसने किया? बफर सिस्टम ने किया यार. बफर सिस्टम इसीलिए तो है बॉडी में कि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो टेंशन नहीं लेने का, इसको बफर सिस्टम अपने साथ बांध देगा और किसी ऐसी चीज में कन्वर्ट कर देगा जो आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी. और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेचारा नाम का स्ट्रॉन्ग एसिड रह जाएगा और ये कुछ कर नहीं पाएगा. नाउ द ऑपोजिट रिएक्शन. अब सिनेरियो को पलट दें. अभी तो हमने बात की कि जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड सिस्टम में ऐड करेंगे. लेकिन अगर अब हम बात कर रहे हैं ऑपोजिट, द ऑपोजिट रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू दिस बफर सॉल्यूशन. अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो इस बफर सॉल्यूशन में कार्बोनिक एसिड है वो इसके साथ कंबाइन होगा एंड इट विल प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर. और इन दिस केस द हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम द NaOH combines with the carbonic acid to form the additional bicarbs. एडिशनल बाइकार्ब यहां से बनेंगे क्योंकि ये अब सोडियम में डिवाइड हो जाएगा और बाइकार्ब में. अब ये जो एडिशनल बाइकार्ब्स बने हैं ये बेसिकली एक बेस बन गया. एक स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट हो गया किस चीज के अंदर? एक वीक बेस के अंदर. There's a weak base replaces the strong base which was added into the system. At the same time, the concentration of the carbonic acid decreases as well because ये utilize हो रहा है, इसके साथ react कर रहा है, and causing more and more carbon dioxide to combine with water to replace the carbonic acid. Point ये है कि जो bicarbonate buffer system है, इस bicarbonate buffer system में दो components हैं. एक component वो है जो एक्सेसिव एसिड को हैंडल करेगा और एक कंपोनेंट वो है जो एक्सेसिव बेस को हैंडल करेगा. एक्सेसिव एसिड को हैंडल करने वाला सिस्टम ये रहा बाइकार्बोनेट, और एक्सेसिव बेस को हैंडल करने वाला सिस्टम ये रहा कार्बोनिक एसिड. तो एक और मजे की बात बताता हूं. एक्सेसिव हाइड्रोजन यानी एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेस मौजूद है. बाइकार्बोनेट क्या है? बेस है ना. और बेस को कंट्रोल करने के लिए एसिड मौजूद है, क्योंकि अभी मैंने इस रिएक्शन में आपको क्या बताया कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सिस्टम में ऐड किया जाएगा तो ये कंबाइन होगा कार्बोनिक एसिड के साथ. तो बेस को कंट्रोल करने के लिए एसिड मौजूद है और
एसिड को कंट्रोल करने के लिए बेस मौजूद है, तो ये जो पूरा सिस्टम है इस तरह काम करता है. एंड सी दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको आगे ये चैप्टर बड़े मजे से समझ में आने वाला है. द नेट रिजल्ट देयरफॉर इज अ टेंडेंसी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स इन द ब्लड टू डिक्रीज, बट द डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड also inhibits respiration and it decreases the rate of carbon dioxide. ये भी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे जब respiratory alkalosis की बात बताऊंगा. So basic बात समझ में आ गई कि we are talking about the bicarbonate buffer system. इसके components हैं, there is a carbonic acid component and there is a sodium bicarbonate component. ये जो carbonic acid component है ये बड़ा important component है क्योंकि ये react कर रहा है excess base के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्सिस बेस. अगर ऐड करें सिस्टम में तो कार्बोनिक एसिड सामने आएगा कि आओ मेरा सामना करो, मुझसे रिएक्ट करो, मैं तुम्हारे स्ट्रांग होने को खत्म कर दूंगा और कोई वीक बेस बना दूंगा. ये मेरा काम है. और अगर सिस्टम में कोई स्ट्रांग एसिड डाला जाएगा तो सिस्टम का जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट के साथ. और ये बाइकार्बोनेट कहां से आया है? सोडियम बाइकार्बोनेट से आया है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब सिस्टम में डला, विच इज HCl फॉर एग्जांपल, तो बाइकार्बोनेट सामने आएगा लड़ने के लिए और कहेगा भाई तू क्या स्ट्रॉन्ग बनेगा भाई, तेरे साथ मैं रिएक्ट करूंगा और तुझे कन्वर्ट कर दूंगा एक वीक एसिड के अंदर. वो वीक एसिड भी एसिड नहीं रहेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बॉडी से बाहर निकल जाएगी. सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. ओके, सो दिस इज हाउ द बफर सिस्टम एक्चुअली रिएक्ट. बफर सिस्टम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के इफेक्ट्स को मिनिमाइज करके खत्म कर देते हैं. Is that clear? Okay, should be very clear. Now ये जो blue boxes में हैं, they are talking about some calculations which I am not interested at the moment to explain because this is going to make the video even further longer. तो ये भी हम titration curves और ये सब नहीं पढ़ रहे हैं because this is not directly relevant to the understanding of the subject. जो second buffer system है, that is the phosphate buffer system. जैसे अभी हमने ये bicarbonate और carbonic acid buffer system किया था, that's a chemical buffer system. बिल्कुल ऐसे ही दिस बफर सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट दिस बफर सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स, नॉट द एक्स्ट्रासेलुलर. एक्स्ट्रासेलुलर में भी ये काम करता है बट इट्स मोर एक्टिवेटेड इन द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, सेल के अंदर. और दूसरी जगह जहां ये फॉस्फेट बफर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रीनल ट्यूब्यूल. सो रीनल ट्यूब्यूल एंड इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में दिस फॉस्फेट बफर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. जैसे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे, कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, बिल्कुल ऐसे फॉस्फेट बफर सिस्टम के भी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, H2PO4 एंड HPO4. नाउ अगर सिस्टम में स्ट्रॉन्ग एसिड एंटर कर देते हैं, सो HPO4 दिस वन यूजुअली ये सोडियम के साथ बाइंड होता है, so Na2HPO4, and this Na2HPO4 actually receives the hydrogen. और जब ये हाइड्रोजन इसमें रिसीव हो जाता है तो ये देखें H2 बन गया. so Na2HPO4 and NaH2PO4 ये दो अलग अलग एक्चुअली मॉलिक्यूल्स हैं. this one for example is accepting hydrogen. तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? because it is accepting hydrogen, it's basically defined as a base. ठीक है, और अब बदले में ये एक मॉलिक्यूल बन गया, तो यानी एक हाइड्रोजन यहां से निकल के यहां गया, यहां दो सोडियम है तो ये एक सोडियम निकलता है, इस क्लोराइड के साथ मिलता है, NaCl बनाता है. देखें इसीलिए यहां पे सोडियम सिंगल हो गया, यहां पे 2 सोडियम, यहां पे 1 सोडियम. तो इसका एक सोडियम कहां गया? इसका एक सोडियम जाके मिल गया क्लोराइड के साथ और हाइड्रोजन यहां डबल हो गया क्योंकि एक हाइड्रोजन आके यहां अटैच हो गया. अब ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन लेने की कैपेसिटी है या हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी है? इसके पास एक हाइड्रोजन ज्यादा हो गया ना, सो इसमें हाइड्रोजन देने की कैपेसिटी है. सो देयरफॉर वी कॉल दिस इज नाउ एन एसिड, दिस इज अ वीक एसिड. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड सिस्टम में ऐड किया था, इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से पीएच काफी ज्यादा कम हो सकती थी, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग एसिड को कन्वर्ट कर दिया गया एक वीक एसिड में, तो अब पीएच का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं रहता, हल्की सी पीएच चेंज होती है. ओके, सो यही बफर सिस्टम का काम है कि किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट कर दे या किसी स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस में कन्वर्ट कर दे. ओके, ये बेस है ना, ये देखें ये चीज और ये चीज एक ही है. और ये यहां पर कैसे बनी? स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप सिस्टम में एंटर कर रहे हैं तो Na2HPO4 इज यूटिलाइज्ड एंड व्हाट विल नाउ हैपन कि ये सोडियम जो है ये यहां आ जाएगा तो ये Na2 हो गया, ऐसे ही है ना. और ये जो H2PO4 है इसमें से एक H निकलेगा और इस OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगा और यहाँ पे H सिंगल हो जाएगा. so, अब ये जो चीज बन गई इसमें हाइड्रोजन एक्चुअली लेने की कैपेसिटी है. यहाँ पे इसने लिया था, देखें इट्स द सेम थिंग, Na2HPO4 इसने हाइड्रोजन लिया था. सो बिकॉज इट कैन टेक हाइड्रोजन, इट इज नाउ नोन एज अ बेस एंड इट्स अ वीक बेस. सो अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH is now converted into a weak base because this
acid which can give hydrogen is reacting with the strong base. So basically again आप चाहे सिस्टम में स्ट्रॉन्ग एसिड डालो या स्ट्रॉन्ग बेस डालो, उनके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर दिया जाता है इस बफर सिस्टम के जरिए, एंड अल्टीमेटली वी गेट, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है तो वी प्रोड्यूस वीक एसिड, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाला है तो वी प्रोड्यूस वीक बेस. ठीक है. अब ये जो फॉस्फेट बफर सिस्टम है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे इन्होंने दोबारा लिखा है इसको कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन किडनीज, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, एंड दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंट्रासेलुलर बफर सिस्टम. ठीक. देन कम्स the third bit of the buffer system, which is proteins as intracellular buffer. मैंने ये आपको बात ऑलरेडी बता दी कि protein have the capacity to bind to hydrogen ion, which means all the proteins are basically bases. Okay, example ये देते हैं hemoglobin की, it can absorb hydrogen ion, so this thing which is produced, this मुझे आप बताएं ये एसिड होगा या बेस? बिकॉज इट कैन गिव हाइड्रोजन आयन, इट इज एन एसिड. लेकिन ये जो प्रोटीन है जिसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है, ये प्रोटीन क्या है? बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन, देयरफॉर इट इज नोन एज अ बेस. सो प्रोटीन्स आर बेसिस. ठीक है. Approximately 60 to 70% of the total chemical buffering of the body fluid is inside the cell, and most of this buffering system is because of the protein. So proteins are very very important buffers in our body. Okay, so what is the summary what we have been discussing up till now? कि जो बॉडी में बफर मैकेनिज्म्स हैं या बॉडी में होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है. बफर मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? बफर मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि अगर पीएच बढ़ रही है तो उसको वापस नॉर्मल किया जाए, अगर पीएच कम हो रही है तो उसको भी वापस नॉर्मल किया जाए. तो इसको हम कहते हैं बफरिंग. इस बफरिंग के लिए नंबर 1 वी हैव केमिकल बफर्स, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड प्रोटीन बफर सिस्टम. सेकंड मैंने आपको बताया था देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इस पूरे हाइड्रोजन आयन बैलेंस को मेंटेन करता है. एंड द थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताई थी वो कौन सा सिस्टम था? रीनल सिस्टम. सो केमिकल बफर्स हम पढ़ चुके. अब मुझे बात करनी है अबाउट द रेस्पिरेटरी कंट्रोल ऑफ एसिड बेस बैलेंस. सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ रेस्पिरेशन कंट्रोल्स हाइड्रोजन आयन concentration. The second line of defense against the acid base disturbance is the control of extracellular fluid carbon dioxide concentration by the lungs. अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का इस कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, अभी मैं आपको समझाता हूं. An increase in the ventilation eliminates carbon dioxide from the extracellular fluid, which by mass action reduces the hydrogen ion concentration. देखें, बेसिक इक्वेशन आपको याद है. द इक्वेशन इज सिंपल. जो कार्बोनिक एसिड वाली मैंने इक्वेशन आपको बताई कि द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज इट प्रोड्यूस इज कार्बोनिक एसिड. अब ये जो कार्बोनिक एसिड है इट देन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन एंड इट प्रोड्यूसेस बाइकार्ब आयन. सो हाइड्रोजन आयन तब बनेगा जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी. सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी जाए, और कैसे कम कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द वेंटिलेशन. तेजी से सांस लेना शुरू करें. जब तेजी से सांस लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, एक्सहेल हो जाएगी, तो ईसीएफ में यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी. अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. यानी हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएंगे. कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाएगी क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन हो रही है. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही है तो ये पूरा रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है. मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा कंबाइन करेगा बाइकार्ब के साथ ताकि ये बने, फिर ये बने और कार्बन डाइऑक्साइड बने और बॉडी से बाहर निकले. तो मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा. हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. यानी अगर कोई ज्यादा रेस्पिरेशन तेजी से करता है, उसकी वेंटिलेशन ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम हो जाएगी. सो दैट लाइन, रीड इट अगेन, इसको दोबारा पढ़ें. एन इंक्रीज इन वेंटिलेशन एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ईसीएफ एंड देयरफॉर रिड्यूसेस द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन. कन्वर्सली, अब इसको उल्टा करते हैं सिनेरियो को. अगर रेस्पिरेशन किसी वजह से कम हो जाए यानी वेंटिलेशन रिड्यूस हो जाए, सो इफ देयर इज रिड्यूस वेंटिलेशन द कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज इन द ब्लड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द ब्लड तो रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयन. सो हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगे. यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ईसीएफ में बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा. ओके, और ये रेस्पिरेशन से इनका लिंक ये है. पल्मोनरी एक्सपिरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंसेस मेटाबॉलिक फॉर्मेशन ऑफ
carbon dioxide. Carbon dioxide is formed continually in the body by intracellular metabolic processes. बनता है ना body के अंदर. After it is formed, it diffuses from the cells into the interstitial fluid and the blood. And flowing blood transports it to the lungs, और lungs से ये body से बाहर निकल जाती है at a partial pressure of carbon dioxide of about 40 millimeters of mercury. If the rate of metabolic formation of CO2 increases, अगर ज़्यादा carbon dioxide बनेगी, then the partial pressure of carbon dioxide of the ECF is likewise also increased. Conversely, if decreased metabolic rate lowers the PCO2 because less carbon dioxide is being produced. If the rate of pulmonary ventilation is increased, carbon dioxide is blown out from the lungs and the PCO2 in extracellular fluid decreases. ये बात समझ में आती है कि अगर concentration ECF में carbon dioxide की कम हो जाएगी तो partial pressure of carbon dioxide भी कम हो जाएगा. Therefore, changes in the pulmonary ventilation or the rate of carbon dioxide formation by the tissue can change the extracellular fluid PCO2. PCO2 यानी partial pressure of carbon dioxide is dependent. अगर ज़्यादा carbon dioxide है किसी भी वजह से तो PCO2 भी ज़्यादा होगा and vice versa. कम carbon dioxide है तो PCO2 भी कम होगा. ठीक है. Now increasing alveolar ventilation decreases the extracellular fluid height. ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो ये सारा डिस्कशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो यही है. दोबारा इसको एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना. तो इसको एक दफ़ा रिपीट करना आई थिंक इट्स वर्थ डूइंग इट बिकॉज बार बार फिर ये मौका नहीं मिलेगा. ये वीडियो एक ही दफ़ा बना रहा हूँ, एक ही दफ़ा आप इसको समझेंगे. सो सपोज देयर इज हाइपर वेंटिलेशन. हाइपर वेंटिलेशन का मतलब कोई तेजी से सांस ले रहा है. तेजी से सांस ले रहा है तो मैं पूछूँ आपसे ECF में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कम हो जाएगी. क्यों? कहां गई कार्बन डाइऑक्साइड? बॉडी से बाहर निकल गई. अच्छा, कम कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी तो रिएक्शन पूरा याद है ना. कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड देन ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन. तो अगर कम हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्शन विल मूव इन दिस डायरेक्शन. हाइड्रोजन विल बी कंज्यूम्ड. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब इंक्रीज पीएच. सो अल्टीमेटली पीएच इंक्रीज होगी, अल्कलोसिस होगा. यानी जो हाइपर वेंटिलेट करेगा उसमें अल्कलोसिस होगा. रीजन समझ में आ गया. सो ये अगर मैं आपसे इस पूरे में यही लिखा हुआ है इस पूरे पैराग्राफ में कि इंक्रीज वेंटिलेशन लीड्स टू अल्कलोसिस. प्लीज एक्सप्लेन. तो उस पूरे का एक्सप्लेनेशन यहां जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया. ठीक है. अब ये बात सारी समझ में आ गई. अगर बॉडी में किसी भी वजह से हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो आपकी जो रेस्पिरेशन है वो स्टिमुलेट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है ताकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दोबारा नॉर्मल हो जाए. देखो ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं ना ये बॉडी के नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म्स हैं. अब किसी भी वजह से अगर बॉडी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, सी हियर, इफ देयर इज इंक्रीज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन. अब बंदा तेजी से वेंटिलेट करेगा का मतलब यह है कि ECF में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है. कई दफा ये बात मैं आपको बता चुका हूं. तो इनिशियल इवेंट था हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना. बॉडी ने वेंटिलेशन को बढ़ा दिया, सब चीजें कर करा के अब रिस्पॉन्स क्या है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई. सो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन. दैट इज हाउ द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज मेंटेन. ये हम कहते हैं कि जनाब बॉडी ने मेंटेन किया और होम्योस्टेसिस. अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे थे तो अब उनको कम कर दिया. दिस इज हाउ योर बॉडी रिएक्ट्स. ओके. सो इट्स काइंड ऑफ अ फीडबैक मैकेनिज्म जो अभी पूरा मैंने डिस्कस किया है कि जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है तो एल्वुलर वेंटिलेशन बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाती है. सो दैट्स अ नेगेटिव फीडबैक लूप. ऑल दिस इज रिटन देयर. ओके. नाउ द एफिशिएंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी कंट्रोल. तो इतना हमने पढ़ लिया कि अगर रेस्पिरेशन बढ़ जाए तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और अगर रेस्पिरेशन कम हो जाए तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है. कैसे? कई दफा बता दिया, एक आखिरी दफा और बता रहा हूं कि आपको पता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कंबाइंस विद यू नो बल्कि इसको रिवर्स सिनेरियो में ऐसे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड. सो carbon dioxide combines with water and it produces carbonic acid and the carbonic acid dissociates into hydrogen ion and bicarb. ये normal flow है आपकी बॉडी में. अब अगर हाइपर वेंटिलेशन हो रही है so the person will be respiring more and more. सांस ज्यादा तेजी से लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाएगी. जब बॉडी से निकल जाएगी तो ब्लड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब ये है कि द होल रिएक्शन विल मूव इन दिस डायरेक्शन. यानी हाइड्रोजन और ये मिलेंगे और ये बनाएंगे, ये बनेगा तो ये बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और बॉडी से निकलेगी. सो हाइड्रोजन आयन विल बी कंज्यूम्ड. सो हाइपर वेंटिलेशन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम.
पीएच क्या हो जाएगी, ज्यादा. सो दैट्स द सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. ओके, तो ये आपको याद रखना है. अब मैंने कम से कम 3 से 4 दफा इसको रिपीट कर दिया है ताकि आप इसको भूलें ना. Okay, so this is how the respiratory system basically controls the hydrogen ion concentration. अब यहां बात ये हो रही थी कितना एफिशिएंट है. इट्स एफिशिएंट बट 100% वापस नहीं लाता. यानी अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है जितना भी बढ़ी थी ये बिल्कुल परफेक्ट उसको कम कर देगा उतना ही नॉर्मल लेवल पे, ऐसा नहीं है. बट इट्स अबाउट 50 to 75% इफेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म. Okay, all right. Now the buffering power of the respiratory system, respiratory regulation of acid-base balance is a physiological type of buffer because it acts rapidly and keeps the hydrogen concentration from changing too much. ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है. इम्पेयरमेंट, हाँ ये आई ना इंपॉर्टेंट चीज यार. अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि इफ समथिंग इज गोइंग नॉर्मल देन व्हाट विल हैपन. नाउ कंसीडर अ कंडीशन जिसमें बंदा सांस नहीं ले पा रहा, जिसमें देयर इज सम प्रॉब्लम विद द रेस्पिरेटरी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी में मसला है, सच एज एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा का प्रॉब्लम ये होगा कि देयर विल बी नो मोर नॉर्मल रेस्पिरेशन. सो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलेगी नहीं, सही से निकलेगी नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाएगा. बढ़ेगा तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर के साथ कंबाइन होगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनेगा. तो एम्फाइसीमा में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये है कि पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. कम पीएच को हम नाम देते हैं एसिडोसिस. एम्फाइसीमा में एसिडोसिस होता है. समझ में आता है लिंक? वेरी इजी. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन impaired lung function. So we have discussed thus far the role of the normal respiratory mechanism. However, under abnormalities, the hydrogen ion concentration handling also changes. For example, an impairment of the lung function, such as in severe emphysema, decreased ability of the lung to eliminate carbon dioxide, which causes a buildup of carbon dioxide, increases in the body, and a tendency towards respiratory acidosis. ये पूरा साइकिल समझ में आ गया कैसे एसिडोसिस होगा? तो ये है ना मजे की चीज. मैंने आपसे कहा था ये चैप्टर इजी है अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ इस चैप्टर को पढ़ा है. नाउ कम्स द थर्ड कंट्रोल ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, व्हिच इज द किडनी एंड द रीनल सिस्टम. और इसीलिए हम रीनल मॉड्यूल में इसको पढ़ रहे हैं. तो अब तक दो सिस्टम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए. पहला था केमिकल बफर सिस्टम, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एंड द फॉस्फेट बफर सिस्टम एंड आल्सो द प्रोटीन बफर सिस्टम. हीमोग्लोबिन की हमने बात की थी. सेकंड सिस्टम आई टोल्ड यू टू कंट्रोल द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज द रेस्पिरेटरी system, and now the third one is the renal control. Okay, the kidneys control acid base balance by excreting either acidic or basic urine as required. Excreting acidic urine reduces the amount of acid in the extracellular fluid, whereas excreting basic urine removes the base from the ECF. ये सिंपल सी बात है. यानी अगर ब्लड में एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा हैं तो एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस होगी ताकि उनको कम किया जा सके. और सेम फॉर बेसिस, अगर बेसिक कंपोनेंट ज्यादा हैं तो बेसिक यूरिन रिलीज होगी ताकि उसको कम किया जा सके ब्लड में. द ओवरऑल मैकेनिज्म वेयर बाय द किडनीज एक्सक्रीट एसिडिक और बेसिक यूरिन इज एज फॉलोज. लार्ज अमाउंट्स ऑफ बाइकार्बोनेट आर फिल्टर्ड कंटिन्यूअसली into the tubule, and if excreted into the urine, बाइकार्बोनेट क्या है? बाइकार्बोनेट क्या है से मेरा क्वेश्चन से मतलब ये है कि एसिड है कि बेस है? बाइकार्बोनेट इज द बेस. सो इफ यू आर एक्सक्रीटिंग अ लॉट ऑफ बाइकार्बोनेट then you are removing base from the blood. Large number of hydrogen ion are also secreted into the tubular lumen by the epithelial cells, thus removing acid from the blood. अब बात यह है कि जो आपका नेफ्रॉन है, बॉबन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल, देन लूप ऑफ हैनले, देन डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट. सो बाइकार्बोनेट भी रिलीज हो रहा है यूरिन में और यूरिन में हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हो रहे हैं. सो इफ मोर हाइड्रोजन आयन इज एक्सक्रीटेड देन बाइकार्बोनेट, then it is net loss of acid क्योंकि more hydrogen is released, and therefore if there is net excretion of hydrogen from the extracellular fluid, we say कि जी acidic urine release हो रही है. Conversely, if more bicarbonate is filtered, then hydrogen is secreted. यानी हाइड्रोजन से ज्यादा बाइकार्बोनेट निकल के जा रहा है, देयर विल बी नेट लॉस ऑफ द बेस. सो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियोज जो भी हम डिस्कस करेंगे, इट्स आइदर मोर लॉस ऑफ एसिड और मोर लॉस ऑफ बेस. ठीक है. ईच डे द बॉडी प्रोड्यूसेस अबाउट 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल एसिड. नॉन वॉलेटाइल एसिड का मतलब ये है कि एनीथिंग विच इज नॉट बाइकार्बोनिक एसिड, इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, बिकॉज बाइकार्बोनिक एसिड तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग
से निकल जाती है, सो दिस इज वॉलेटाइल, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं वॉलेटाइल एसिड। लेकिन हर वो चीज़ जो ऐसे एसिड्स हैं जिनके कंपोनेंट्स ब्लड में ही रहते हैं, लंग्स से नहीं निकल सकते, दे कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड बाय द लंग्स, दे आर नोन एज नॉन वॉलेटाइल एसिड्स। द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर दीज एसिड्स फ्रॉम द बॉडी इज रीनल एक्सक्रीशन, बिकॉज वो लंग से निकल ही नहीं सकते, इसीलिए रीनल एक्सक्रीशन इज द मेन मैकेनिज्म। द किडनीज मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इन द यूरिन, अ टास्क दैट इज क्वांटिटेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सक्रीशन ऑफ द एसिड्स। Each day kidney filters about 4,320 milliequivalents of bicarbonate. नंबर्स याद रखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बट जस्ट एन एग्जाम्पल इज देयर कि किस तरह से ये बैलेंस मेंटेन होता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब्ड from the tubule, thereby conserving the primary buffer system, because bicarbonate you know is a very important buffer system of your body. So इसको conserve किया जाता है, जितना bicarbonate release होता है वो सारे के सारा reabsorb हो जाता है। As discussed later in this chapter, both the reabsorption of bicarbonate and excretion of hydrogen are are accomplished through the process of hydrogen ion secretion by the tubule. यानी अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि how the hydrogen ions are secreted. Because bicarbonate must react with secreted hydrogen ion, it has to be in a proper ratio and balance. Because अगर ज़्यादा bicarbonate release होगा तब भी गड़बड़ है, अगर ज़्यादा hydrogen release होगा तब भी गड़बड़ है। Then an additional 80 milliequivalent. Actually, I would not recommend going through this, so just leave these numbers. They will actually confuse you more than you understand. When there is a reduction in the अब ये सुनो, when there is a reduction in the extracellular fluid hydrogen ion concentration, reduction of hydrogen ion concentration का मतलब alkalosis, क्योंकि जब reduction in hydrogen ion concentration होगा तो pH क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। The kidneys usually secrete less hydrogen ion, बिकॉज ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन बॉडी में कम है, तो किडनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करके मजीद जुल्म नहीं करेगा। किडनी विल सिक्रीट लेस हाइड्रोजन आयन एंड फेल टू रीअब्सॉर्ब ऑल द फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी पीएच बढ़ी हुई है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो पीएच और बढ़ेगी, देयर बाय इट इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट इन सच कंडीशन। तो अगर बॉडी में अल्कलोसिस है तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा रिलीज होगा यूरिन में। बिकॉज बाइकार्बोनेट नॉर्मली बफर्स हाइड्रोजन आयन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, दिस लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट इज सेम एज एडिंग द हाइड्रोजन आयन टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। चूंकि अब बाइकार्बोनेट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है ये जो बाइकार्बोनेट है ये हाइड्रोजन को अपने साथ बाइंड नहीं करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनवाएगा। सो बाइकार्बोनेट बॉडी से कम करना इज इक्वल टू हाइड्रोजन का बॉडी में बढ़ाना। देयरफॉर इन अल्कलोसिस रिमूवल ऑफ बाइकार्बोनेट raises the extracellular fluid hydrogen concentration. So basically अगर बॉडी में अल्कलोसिस की सिचुएशन है तो बाइकार्बोनेट निकल गया कहाँ, बाइकार्बोनेट रिलीज हो गया यूरिन में और बॉडी में हाइड्रोजन इज नाउ गोइंग बैक टू द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। एसिडोसिस में ये सिनेरियो रिवर्स हो जाएगा। इन एसिडोसिस द किडनीज सीक्रीट एडिशनल हाइड्रोजन आयन, क्योंकि अब बॉडी में हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है तो ये फर्दर सीक्रीट किए जाते हैं एंड द किडनीज डू नॉट एक्सक्रीट बाइकार्ब, तो अब बाइकार्ब नहीं बल्कि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें नोटिसेबल हैं, एक तो ये कि चूंकि बॉडी में एसिडोसिस की सिचुएशन है सो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये हाइड्रोजन आयन निकल रहा है यूरिन में, एक तो ये काम हो रहा है। दूसरा बाइकार्बोनेट यूरिन में रिलीज नहीं हो रहा बल्कि ब्लड में दोबारा एब्जॉर्ब हो रहा है। अब जो ये बाइकार्बोनेट ब्लड में एब्जॉर्ब होगा ये भी जाकर के बफर करेगा, हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन दो तरह से ब्लड में कम हो रही है, एक बाय इंक्रीजिंग मोर एक्सक्रीशन in the urine and the second one by more buffering with the bicarbonate। ठीक है, अब ये जो एक समरी पैराग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट के हाउ डज द ECF हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली मैनेज बाय द किडनी। सो नंबर 1 सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट एंड नंबर 3 प्रोडक्शन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट। तो बॉडी में जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसको हैंडल करने के लिए तीन मैकेनिज्म्स हैं। पहला, इसको यूरिन में निकाल दिया जाए, सो सीक्रीट करें नेफ्रॉन में। सो इफ दिस इज अ नेफ्रॉन, ऐड हाइड्रोजन, secrete hydrogen which will ultimately get out of the body. So that's one mechanism. The other one is absorb bicarbonate. जब bicarbonate body में absorb होगा तो ये जाकर के भी तो हाइड्रोजन को बफर करेगा, उसके साथ बाइंड होगा, तो हाइड्रोजन की concentration डाउन करने के लिए bicarbonate बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया।
तो एक तो रीएब्सॉर्ब हो रहा है ये बाइकार्बोनेट फ्रॉम द यूरिन, तीसरा बॉडी में बाइकार्बोनेट बनता भी तो है. योर बॉडी प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस बाइकार्ब एंड हाइड्रोजन आयन. सो ये जो बाइकार्ब बन रहा है ये भी जाके इस हाइड्रोजन आयन को ब्लड में बफर करेगा. सो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज डिपेंडेंट ऑन दीज थ्री मैकेनिज्म. एक किडनी से सिक्रीशन और बाकी हैंडलिंग है बाय द बाइकार्बोनेट. अब बाइकार्बोनेट यूरिन से रीएब्सॉर्ब भी हो रहा है और नया प्रोड्यूस भी हो रहा है बॉडी में. तो अब वन बाय वन जरा ये मैकेनिज्म डिस्कस मुझे करने हैं आपके साथ कि हाउ इज द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस. सो हाइड्रोजन आयन एंड ऑल्सो द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट. Hydrogen ion secreted and bicarbonate reabsorption occur in virtually all parts of the tubule except the descending and the ascending thin lips of loop of Henle. पूरे ही नेफ्रॉन के अंदर हाइड्रोजन सिक्रीट हो रहा होता है, बाइकार्ब रीएब्सॉर्ब हो रहा था. So this is going on. Keep in mind that for each bicarbonate reabsorbed and hydrogen ion must be secreted to keep the balance. Okay, about 80 to 90% of the bicarbonate reabsorption occurs in the proximal convoluted tubule, so only a small amount of bicarbonate flows into the distal tubules. In the thick ascending loop of Henle, only another 10% of the filtered bicarb is reabsorbed, and the remainder of the reabsorption takes place in the distal tubule and the collecting ducts. As discussed previously, the mechanism whereby bicarbonate is reabsorbed also involves the tubular secretion of hydrogen, but different segments. Basically बात ये हो रही है कि most of the bicarbonate is reabsorbed into the body, 80 to 90% in the proximal tubule, और बाकी जो 10% रह गया वो आगे जाके लूप ऑफ हैनले और फिर दीगर पार्ट्स में वो भी reabsorb हो जाता है. और जो हाइड्रोजन आयन secreted by the secondary active transport, ये हमने पिछली वीडियोस में डिफरेंट आयंस के साथ हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, बट यहाँ पे उसको जरा रिवाइज करते हैं. The epithelial cells of the proximal tubule, the thick segment of the ascending loop of Henle and the early distal tubule, ये सारे लोकेशंस अब आपको पता है मैं क्या नाम ले रहा हूँ, they all secrete hydrogen into the tubular fluid by sodium हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट. यानी अगर हम डायग्राम को देखें, दिस इज द डायग्राम फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेल, सपोज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर सेल, इट्स अ ट्यूबुलर सेल. ये ल्यूमेन है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है. सो ल्यूमेन मतलब यहाँ पे यूरिन है. सो सी व्हाट इज हैपनिंग, इस सेल में से हाइड्रोजन निकल के यूरिन में जा रहा है, बदले में सोडियम अंदर आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्ट. सोडियम रीएब्सॉर्ब हो रहा है और हाइड्रोजन जा रहा है इनटू द यूरिन. सही ना, ये वाली बात यहाँ पे लिखी है कि सोडियम और हाइड्रोजन का काउंटर ट्रांसपोर्ट है. दिस सेकेंडरी एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन इज कपल्ड विद ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इनटू द सेल, और ये बात हम कर चुके. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोटीन या काउंटर ट्रांसपोर्ट, व्हाटएवर नेम यू गिव इट. अब ये जो सारा सिस्टम है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, क्योंकि होता ये है कि बेजोलेटरल सरफेस पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस सोडियम को बाहर फेंक देता है सेल से इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, पोटेशियम को अंदर ले आता है. तो जब सोडियम बाहर चला जाता है तो सेल के अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है कम. अब जब सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है तो यूरिन से सोडियम यहाँ आता है सेल के अंदर, बदले में हाइड्रोजन बाहर जाता है. तो ये सारा मैकेनिज्म यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हुआ है इन्होंने कि हाउ डज दिस हाइड्रोजन सिक्रीशन एक्चुअली हैपेंस. ओके नाउ, और ये पूरा हाइड्रोजन कहाँ से आया, इस सेल के पास हाइड्रोजन कहाँ से आया, ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई. इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बन भी रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी हो रहा है फ्रॉम हियर एंड देयर, इंटरस्टिशियम से भी एब्जॉर्ब हो रहा है, यूरिन से भी एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर भी सेल के अंदर मौजूद है. ये मिलकर बनाते हैं कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में, बाइकार्ब रीएब्सॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन इधर यूरिन में जा रहा है. सो फॉर एवरी हाइड्रोजन सीक्रेटेड इनटू द यूरिन अ बाइकार्बोनेट इज रीएब्सॉर्ब्ड. ये अभी मैंने जुमला थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वेयर बाय bicarbonate is reabsorbed involves the tubular secretion of hydrogen. So whenever the bicarb is reabsorbed into interstitium, hydrogen is secreted into the urine. Okay, simple stuff है यार, ये कोई इतनी मसले की बात नहीं है. ये सारी चीजें वही हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase जो मैंने बताया. Thus the bicarbonate generated in the cell moves downhill across the basolateral membrane into the interstitium, and the net result is hydrogen secreted into the tubular lumen, यानी कि यूरिन में हाइड्रोजन चला जाएगा और बाइकार्बोनेट कहाँ जाएगा, enters into the blood. So this diagram is all what is explained all here. Okay, let's move on. Now the filtered bicarbonate is reabsorbed by the interaction with hydrogen in the tubules. ये बड़ी इंपॉर्टेंट मजेदार हेडिंग है यार, और बड़ा मजेदार पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है. ये मैं समझाता हूँ कि what they are talking about. ये बाइकार्बोनेट जो फिल्टर होके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए
यूरिन में एंटर हुआ है ट्यूबुलर फ्लूइड में, सो दिस द बाइकार्बोनेट. दिस बाइकार्बोनेट कंबाइंस विद द हाइड्रोजन एंड फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड. और जो कार्बोनिक एसिड है डिसोसिएट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वाटर गोज आउट इन द यूरिन, इज आल्सो रीएब्सॉर्ब. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट एंटर्स द सेल हेयर. सो ये जो बाइकार्बोनेट है ये एक्चुअली रीएब्सॉर्ब हो रहा है बाय दिस पाथवे. सो ये बाइकार्बोनेट यूरिन में आया और ये बाइकार्बोनेट इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में सेल में एंटर हुआ, अंदर जाके ये बाइकार्बोनेट दोबारा बन गया और ये चला गया इंटरस्टिशियम के अंदर. तो हम कहते हैं कि जी ये रीएब्सॉर्ब हो गया. सो ये पूरा बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्ब हो गया. बाइकार्बोनेट की शक्ल में डायरेक्टली रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ बट इस तरह रीएब्सॉर्ब हो गया. है ना बात मजेदार. सो बाइकार्बोनेट आयन डू नॉट रेडिली परमिएट द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन. तो ये वो कहते हैं ना उंगली सीधी करके अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. तो बाइकार्बोनेट जो है वो हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर चली जाती है, वापस सेल के अंदर जाकर कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर बाइकार्बोनेट बनता है. ये बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्ब हो जाता है ना. मजेदार स्टोरी. Thus each time hydrogen is formed in the tubular epithelial cell, bicarbonate is also formed and it is released into the blood. Easy peasy stuff. Now bicarbonate is titrated against hydrogen in the tubule. Under normal conditions, the rate of tubular hydrogen secretion is about 4400 milliequivalents per day, and the rate of filtration of bicarbonate is about roughly equal na 4320 milliequivalents per day. Thus the quantities of these two ions enter the tubule almost equal, and they combine with each other to form the carbon dioxide and water, carbonic acid और फिर carbon dioxide and water. तो ये बेसिकली जो बाइकार्ब फिल्टर होके यूरिन में आया और जो हाइड्रोजन सिक्रीट होके सेल से आया, ये जो यूं मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द टाइट्रेशन प्रोसेस. ये आपस में मिलकर टाइट्रेट होते हैं, ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और टेढ़ी उंगली करके बाइकार्ब इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड. ठीक है. सो ऑल दिस शुड बी वेरी सिंपल. नाउ प्राइमरी एक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द intercalated cells of the late distal tubule. Now beginning in the late distal tubule and continuing through the remainder of the tubular system, the tubular epithelium secretes hydrogen ion by primary active transport. The characteristic of this transport are different from those discussed in the proximal tubule. यहाँ जो भी हमारी बात हो रही थी ना, इससे थोड़ा different मामला है intercalated cells में. The mechanism for primary active hydrogen secretion was discussed in chapter 8. हम already actually पढ़ भी चुके हैं, but let's revise here. It occurs in the luminal membrane of the tubular cell where hydrogen is transported directly by the specific protein, the hydrogen transporting ATPase, and a hydrogen potassium ATPase transporter. Not the hydrogen sodium but the hydrogen potassium. Okay. The energy required for the pump comes from the ATP. So if you look at this diagram, this is type A intercalated cell, this is tubular lumen यानी यहाँ पर urine है, and this is the renal interstitium यानी this is the basolateral membrane and this is the luminal membrane. So what's happening here कि hydrogen is being secreted into the lumen. You see here. और एक तो डायरेक्ट एक प्रोटीन है जो हाइड्रोजन को पकड़ के बाहर फेंक देता है, एंड देन देयर इज अ प्रोटीन जो हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है और पोटेशियम को अंदर लेके आता है. सो ये दो तरह के चैनल्स हैं. नेट इफेक्ट यही है कि हाइड्रोजन यूरिन में रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो मैकेनिज्म नहीं है जो हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पढ़ा था कि बाइकार्ब हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, ये अंदर एंटर होगा बाइकार्ब इस तरह से. वो स्टोरी यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे स्टोरी डिफरेंट है. यहाँ पे सेल के अंदर तो बाइकार्बोनेट है क्योंकि सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना रहा है, एंड द कार्बोनिक एसिड इज ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्ब. हाइड्रोजन निकल जाएगा इन दो रस्तों के जरिए, बाइकार्ब दोबारा रीएब्सॉर्ब हो जाएगा इनटू द ब्लड. ठीक है. राइट. ओके. टाइप ए इंटरकलेटेड सेल की सारी स्टोरी बता दी यार मैंने, इसको आप पढ़ लीजिएगा. इज ऑल व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन with phosphate and ammonia buffers in the tubule generates new bicarbonate. ये जरा मजेदार कॉन्सेप्ट है यार, इसको अलग से पढ़ते हैं, अलग से हेडिंग दी है. तो ये न्यू बाइकार्बोनेट पे इतना फोकस क्यों किया है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ न्यू बाइकार्बोनेट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. बाइकार्बोनेट वैसे तो जो ट्यूबुलर रूमेन में फिल्टर होकर आता है, यानी बॉमन कैप्सूल से जब पूरे नेफ्रॉन में फिल्टर होकर जो बाइकार्बोनेट आता है वो तो एब्जॉर्ब हो ही जाता है. अभी हमने ऊपर मैकेनिज्म सारा देखा. लेकिन वो बाइकार्बोनेट जो फिल्टर होके नहीं आया है लेकिन फिर भी बॉडी में रीएब्सॉर्ब हो रहा है, इसे हम कहते हैं न्यू बाइकार्बोनेट. और ये न्यू बाइकार्बोनेट बार बार बॉडी में इसलिए एंटर हो रहा होता है बिकॉज हाइड्रोजन रिलीज हो रहा होता है. और ये जनरल रूल है कि जब कभी हाइड्रोजन रिलीज होगा इनटू द यूरिन, बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्ब होगा इनटू द ब्लड. ओके. और अगर ऐसा बाइकार्बोनेट रीएब्सॉर्ब हो जो फिल्टर होके कभी यूरिन में आया ही नहीं था, तो ऐसे बाइकार्बोनेट को हम कहते हैं न्यू बाइकार्बोनेट.
अब यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट एक्चुअली बाद में बताता हूँ आपको, पहले यहाँ कुछ सिस्टम बताता हूँ कि जो हाइड्रोजन निकल के यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हेन हाइड्रोजन इज सिक्रेटेड इन एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट फिल्टर्ड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्सेस हाइड्रोजन कैन बी एक्सक्रीटेड इन द आयोनिक फॉर्म इन द यूरिन. और इसकी फिर सिंपल इन्होंने यहाँ मैथमेटिक्स दी है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट इज कि अगर 80 मिली इक्विवेलेंट एसिड्स आपको रिलीज करने हैं बॉडी से सो जरा सुनिए 2667 लीटर्स ऑफ यूरिन प्रोड्यूस करना होगा इन ऑर्डर टू सीक्रेट दैट मच अमाउंट ऑफ एसिड. तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है इतना सारा लिक्विड हम रिलीज कर दें, इतना सारा यूरिन बनाएं, 2500 लीटर यूरिन, सोच के कुछ अजीब सा लग रहा है. बट द पॉइंट इज कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है. इसका सॉल्यूशन बॉडी ये नहीं निकाला कि जो हाइड्रोजन रिलीज होता है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन वो किसी ना किसी बफर सिस्टम के साथ कंबाइन हो जाता है और बफर की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है. और वो डिफरेंट बफर सिस्टम्स मुझे आपको अभी पढ़ाने हैं, समझाने हैं, जिसमें से पहला बफर सिस्टम है फॉस्फेट बफर सिस्टम. सी दिस इज अ ट्यूबुलर सेल, नेफ्रॉन का सेल है, ये ल्यूमेन है, तो यानी ये वो पार्ट है जहां से यूरिन ट्रेवल करेगा. और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द इंटरस्टिशियल पार्ट, तो ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होगी. तो अब जरा यहाँ सारा ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. देखें, मैंने आपको पहले भी जब फॉस्फेट बफर सिस्टम बता रहा था तब ये बात की थी कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूरिन में ट्यूबुलर प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्रोजन में दिस बफर सिस्टम. अब यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी. देखें, हो ये रहा है कि यूरिन में दिस बफर इज ऑलरेडी प्रेजेंट यानी HPO4 और हाइड्रोजन भी इस सेल में से रिलीज होके यूरिन में आता है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन होता है. सो ये जो बफर का कंपोनेंट है दिस इज एक्चुअली एब्जॉर्बिंग अ हाइड्रोजन. सो बिकॉज दिस इज एब्जॉर्बिंग अ हाइड्रोजन, व्हाट इज इट? इट्स अ बेस. और जब ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अटैच कर लेता है, देन H2 हो गया. तो नाउ दिस इज प्रोड्यूस. अब चूंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है, इट हैज द कैपेसिटी टू गिव अ हाइड्रोजन, इसीलिए दिस इज एन एसिड. तो जो एक्सेस हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में रिलीज नहीं हो रहा बल्कि इस बफर के साथ मिलके इस फॉर्म में रिलीज हो रहा है. तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि जो हाइड्रोजन है वो एज हाइड्रोजन आयन नहीं निकल जाता यूरिन में, बट बफर के साथ मिलके निकलता है. अब ये सिनेरियो सारा, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड था इस सेल में और इंटरस्टिशियम से भी आया, पानी था, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो गया बाइकार्ब में, और बाइकार्ब ये रहा, और हाइड्रोजन आयन में. हाइड्रोजन आयन सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट के साथ यूरिन वाले ट्यूबुलर ल्यूमेन में चला गया और बाइकार्बोनेट ब्लड में एंटर हो गया. ये वो बाइकार्बोनेट है जो फिल्टर हुआ ही नहीं, नया प्रोड्यूस हुआ है, इसीलिए इसे हम कहते हैं न्यू बाइकार्बोनेट. ठीक है, तो ये पहला बफर सिस्टम है जो मैं आपको बता रहा हूं, फॉस्फेट बफर सिस्टम, जो यूरिन में हाइड्रोजन को बाइंड करके यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है. सो दिस बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग एक्सेस हाइड्रोजन इन द यूरिन. तो ये सारा टेक्स्ट अब आप पढ़ लीजिएगा, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट. एक दो और बफर सिस्टम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. देखें, सेल्स के अंदर वी आल्सो प्रोड्यूस, पर्टिकुलरली इन द कलेक्टिंग ट्यूबुलर डक्ट यहाँ पे शो किया हुआ, बट और सेल्स भी नेफ्रॉन के, वी प्रोड्यूस अमोनिया कंटिन्यूसली एज पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. और ये जो अमोनिया है ये रिलीज होके, बिकॉज सेल्स परमिएबल होते हैं अमोनिया को, ये रिलीज होके यूरिन यानी ट्यूबुलर ल्यूमेन में आ जाता है. और बॉडी में आपको पता है सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, वाटर तो है ही, कार्बोनिक एसिड बनेगा और वो ब्रेकअप होगा इनटू बाइकार्ब एंड हाइड्रोजन अपने प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स के जरिए निकल जाएगा, ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन में आ जाएगा. अमोनिया भी यहाँ मौजूद था, इसके साथ मिलके वो अमोनियम बनाएगा, ये अमोनियम रिलीज हो जाएगा. सो यहाँ हाइड्रोजन अकेला एज हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं हो रहा, बट अमोनिया के साथ मिलके रिलीज हो रहा है. और ये जो बाइकार्ब यहाँ बना ये ब्लड में आ जाएगा, बिकॉज ये बाइकार्ब कभी फिल्टर हुआ ही नहीं था, ये नया बना है, इसीलिए इसको भी हम कहते हैं न्यू बाइकार्ब. सो ये दूसरा बफर सिस्टम है विच इज नोन एज अमोनिया बफर सिस्टम. तो ये अमोनिया के साथ भी कंबाइन होता है. ठीक है, और ये अमोनियम जो यहाँ बना है ना, ये सिर्फ इस प्रोसेस से नहीं बनता, अमोनियम सेल्स में वैसे भी बनता है एज मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूटामीन. ग्लूटामीन फिल्टर होकर आता है, एब्जॉर्ब होता है सेल्स के अंदर, सेल्स इसको मेटाबोलाइज करते हैं एंड दे प्रोड्यूस अमोनियम व्हिच इज रिलीज्ड इनटू द यूरिन इन एक्सचेंज फॉर सोडियम. और दो अमोनियम आयन बनते हैं तो दो बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, ये बाइकार्बोनेट भी न्यू बाइकार्बोनेट कहलाते हैं. सो अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल किया जाए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बाइकार्बोनेट इन द बॉडी, तो
पहला तो यही आपने बताना है किडनी वाले साइकिल की अगर मैं बात करूं तो वो सारा बाइकार्बोनेट जो फिल्टर होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एक तो ये सोर्स है और उसका मैकेनिज्म हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि दिस हैपेंस एज पार्ट ऑफ दी जो बाइकार्बोनेट आता है वो बाइकार्बोनेट डायरेक्टली तो नहीं एब्जॉर्ब होता, पहले कार्बोनिक एसिड बनाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, वापस कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। बट ये जो बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब हो रहा है ये वाला बाइकार्बोनेट है जो फिल्टर भी हुआ था, तो जो फिल्टर हुआ वो रीअब्जॉर्ब हो गया, तो इसको हम न्यू बाइकार्बोनेट नहीं कहते। न्यू बाइकार्बोनेट बनता है इन बफर सिस्टम से कि हाइड्रोजन बफर आउट हो रहा है फॉस्फेट बफर सिस्टम के साथ, बाइकार्बोनेट अंदर, अमोनिया के साथ बाइकार्बोनेट अंदर, अमोनियम प्रोडक्शन के साथ ये सारा बाइकार्बोनेट कहलाता है न्यू बाइकार्बोनेट। ओके, सो ये सारी कहानी इस डायग्राम में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। नाउ दिस इज अ हेडिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ बिकॉज यहाँ पे इन्होंने बताया कि एक्चुअली हाउ टू क्वांटिफाई द रीनल एसिड बेस एक्सक्रीशन, बट दिस इज नॉट रेलिवेंट एट द मोमेंट बिकॉज या इन्होंने एक्चुअली फॉर्मूले वगैरह बताएं किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो नेट एसिड सिक्रीशन, नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में ये एल्गोरिदम एक डिस्कस करूंगा। किधर गया ये एल्गोरिदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेरा टारगेट आपको ये सिखाना है बिकॉज अगली जो हेडिंग मुझे डिस्कस करनी है वो है रेगुलेशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर हाइड्रोजन सिक्रीशन और फिर हाउ द एसिडोसिस एंड अल्कोलोसिस इज डेल्ट विद इन द बॉडी। तो हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन है इसके डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं और वो कंट्रोल मैकेनिज्म्स हमको बेसिकली यहाँ अभी डिस्कस करने और वन बाय वन डिस्कस करेंगे उनको। दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एज डिस्कस अर्लियर। हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन बाय द ट्यूबुलर एपिथेलियम इज नेसेसरी फॉर बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन, यानी जब बाइकार्बोनेट टिश्यू में जाता है इंटरस्टिशियल टिश्यू में तो हाइड्रोजन ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन में आता है। सो दिस इज लाइक दिस कि फॉर एवरी हाइड्रोजन there is a bicarbonate which is reabsorbed. ओके, और न्यू बाइकार्बोनेट क्या होते हैं ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया ऑलरेडी। द रेट ऑफ हाइड्रोजन सिक्रीशन मस्ट बी केयरफुली रेगुलेटेड द किडनी टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, ये बात हमें पता है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। इन अल्कलोसिस, आप जरा सुनिए, बेसिकली सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन अगर बेसिक्स आपने मेरी वीडियो में ऊपर अच्छे से समझिए तो ये समझ में आएगा। अल्कलोसिस में क्या होगा मुझे बताएं, बॉडी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी? अल्कलोसिस में ऑब्वियसली ईसीएफ के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, इसी को तो अल्कलोसिस बोलेंगे ना, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एसिडोसिस। अल्कलोसिस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, पीएच क्या होगी, पीएच बढ़ जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब बॉडी में ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है तो मुझे बताओ यूरिन में हाइड्रोजन कम सिक्रीट होना चाहिए या ज्यादा? कम होना चाहिए बिकॉज बॉडी में ऑलरेडी कम है, आप ज्यादा सिक्रीट कर देंगे यूरिन में तो मसला हो जाएगा। सो इन अल्कलोसिस द ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज रिड्यूस्ड टू अ लेवल दैट इज टू लो टू अचीव द कंप्लीट बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन, इनेबलिंग द किडनीज टू increase the bicarb excretion. Titratable acids and ammonia are not excreted in alkalosis because there is no excess of hydrogen available to combine with non-bicarbonate. देखें अमोनिया और जो इस तरह के फॉस्फेट बफर सिस्टम है ये उस वक्त रिलीज होते हैं यूरिन में जब इनफ हाइड्रोजन होता है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अल्कलोसिस की, अल्कलोसिस में तो ऑलरेडी हाइड्रोजन नहीं है तो इन एसिड्स की सिक्रीशन कम हो जाती है, ठीक है, और बाइकार्ब की सिक्रीशन एक्चुअली बढ़ जाती है, राइट। तो ये बात इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। Therefore no new bicarbonate is added to the blood in alkalosis. ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? देखो मैं डायग्राम पे दोबारा लेके चलता हूं। न्यू बाइकार्बोनेट का कॉन्सेप्ट क्या था? न्यू बाइकार्बोनेट का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है इनफ अमाउंट में तो वो हाइड्रोजन सिक्रीट होके ल्यूमेन में आएगा, फॉस्फेट बफर के साथ मिलेगा और ये निकल जाएगा यूरिन में। और चूंकि हाइड्रोजन यहां कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है तो बाइकार्बोनेट जनरेट होके जा रहा था इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब कहानी पलट गई है यार, इनफ हाइड्रोजन है ही नहीं, इनफ हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं हो रहा। इनफ हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो ये फॉस्फेट बफर सिस्टम यूटिलाइज नहीं होगा, इनफ हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा तो ये बाइकार्ब भी ब्लड में एंटर नहीं होगा। तो न्यू बाइकार्ब की जो प्रोडक्शन है अल्कलोसिस की सिचुएशन में, यानी ऐसी सिचुएशन में जब बॉडी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो न्यू बाइकार्बोनेट नहीं बनेगा क्योंकि इनफ हाइड्रोजन है ही नहीं यार रिलीज होने के लिए। ये रिलीज होगा तो न्यू बाइकार्बोनेट बनेगा ना। सो ये वाली लाइन देखें, एक लाइन समझने के लिए कितना जोर लग रहा है और कितना आपने अगर मेरा पिछला सेक्शन पूरा सुना हुआ है इस वीडियो का तब ये लाइन समझ में आएगी। नो न्यू बाइकार्बोनेट इज एडेड टू द ब्लड इन अल्कलोसिस। वो इंपॉर्टेंट,
अच्छा, अब एसिडोसिस की कहानी मुझे बताओ। एसिडोसिस में ईसीएफ में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या ज्यादा? एसिडोसिस में ये कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी, पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बॉडी में हाइड्रोजन दे दबादब ज्यादा है, तो मुझे बताएं ये यूरिन में सिक्रीट भी ज्यादा होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन विल बी इंक्रीज्ड, और बाइकार्ब ज्यादा रीएब्जॉर्ब होगा, और न्यू बाइकार्ब बनेगा या नहीं बनेगा? यस, ऑब्वियसली न्यू बाइकार्ब विल बी प्रोड्यूस्ड, और जो टाइट्रेबल एसिड्स थे जैसे कि अमोनिया और फॉस्फेट बफर के टाइट्रेटेबल एसिड्स वो ज्यादा रिलीज होंगे। यस, बिकॉज ज्यादा हाइड्रोजन मतलब ज्यादा हाइड्रोजन का रिलीज मतलब ज्यादा ये वाला एसिड इनटू द यूरिन। ठीक है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुश्किल तो नहीं है। Now the tubular cells respond directly to an increase in PCO2। अब ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। आपको याद है शुरू में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था इंक्रीज PCO2 का क्या मतलब है। इंक्रीज PCO2 का मतलब है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये है कि रिएक्शन क्या था, याद है? कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड, और ये जो कार्बोनिक एसिड है अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करता है किसमें? हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। तो इंक्रीज PCO2 मतलब इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब देयर इज मोर एंड मोर हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। तो अगर सेल्स इस बात को, नेफ्रॉन के सेल्स इंक्रीज PCO2 को सेंस करते हैं तो उन्हें पता होता है कि बॉडी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सो नाउ दे विल इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोजन सिक्रीशन। सही होगी बात, यानी ज्यादा ज्यादा बाइकार्बोनेट बॉडी में एंटर होगा। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। Now the tubular cells usually respond also to the decrease in hydrogen ion concentration यानी अल्कलोसिस, और अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो सिक्रीशन बाय द नेफ्रॉन भी कम हो जाएगी। सारा साइकिल वैसे ही चलेगा जैसे हाइड्रोजन की कमी में होता है। हाइड्रोजन सिक्रीट नहीं होगा, बाइकार्ब रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, एंड टाइट्रेटेबल एसिड्स जो हैं वो यूरिन में सिक्रीट नहीं होंगे। Okay, now there are some other players also which are important for at the level of hydrogen controlling, and they are particularly, यहाँ मैंने एक चीज छूट गई, that is the aldosterone। किसी भी वजह से अगर एल्डोस्टेरोन बॉडी में ज्यादा है तो इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन बाय द टाइप 1A इंटरकेलेटेड सेल। एल्डोस्टेरोन का एक्शन यही है टू गेट हाइड्रोजन आउट, सोडियम इन, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, right, now another thing which is important, extracellular fluid volume depletion stimulates the sodium reabsorption by renal tubule and increases hydrogen secretion. So sodium reabsorption into the blood and hydrogen into the urine, ये volume depletion का effect है because of angiotensin 2 for example, इसका ये काम है। and also aldosterone levels, इन दोनों का effect ये होगा कि sodium will be absorbed into the blood, hydrogen will be secreted into the urine। Okay, changes in plasma potassium concentration can also influence hydrogen secretion, with hypokalemia stimulating hyperkalemia inhibiting hydrogen secretion। ये important है कि अगर hypokalemia होगा तो hydrogen secretion stimulate होगा। कैसे? Decreased plasma potassium concentration tend to increase hydrogen ion concentration, यानी अगर पोटेशियम कम होगा और पोटेशियम कम होने का इफेक्ट ये होगा कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो सारी सीक्वेंस अब आपको पता है कि मोर एंड मोर हाइड्रोजन विल बी सीक्रेटेड इन द यूरिन। सही है? ओके, that sort of thing। and hyperkalemia इसका उल्टा इफेक्ट होगा। if there is hyperkalemia then the hydrogen secretion is reduced and bicarbonate reabsorption also to tackle the process which is to counter acidosis। ये भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे कि how acidosis and alkalosis are actually responded by the body, but the point here to remember is if low potassium then more hydrogen, then more secretion of hydrogen. If more potassium, that means low hydrogen, that means do not secrete hydrogen, stop the secretion of hydrogen। Okay, that's how your body responds, right? Now I need to talk about how the body actually handles
renal correction of acidosis and renal correction of alkalosis. ये दोनों headings जो हैं ये basically मैं आपको इस diagram पे explain करता हूँ कि ये diagram अगर आपने समझ ली तो renal handling क्या बल्कि respiratory handling भी आपको समझ में आ जाएगी of both acidosis as well as alkalosis. अब जो basic concept है renal correction of acidosis और alkalosis का, ये actually अगर पूरी वीडियो आपने ढंग से सुनी है तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, आसानी से समझ में आएगी बात. लेकिन मुझे वो एल्गोरिथम आपके साथ डिस्कस करना है जो एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की हैंडलिंग को डील करता है. बट मैं कुछ पैराग्राफ यहाँ पढ़ता हूँ जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन. नाउ दैट वी हैव डिस्क्राइब्ड द मैकेनिज्म वेयर बाय द किडनीज सीक्रेट हाइड्रोजन आयन and reabsorb bicarbonate, we can explain how kidneys readjust the pH of the extracellular fluid. अब अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और पहले तो ये टर्म समझ लें कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, व्हाट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. सो लेट मी टेक यू एक्चुअली डायरेक्टली टू दिस एल्गोरिथम. देखें, अगर आर्टीरियल ब्लड सैंपल की आप पीएच चेक करते हैं और वो पीएच लेस देन 7.4, नॉर्मल पीएच आपको पता है कितनी होती है, 7.4, that is the normal pH of your blood. If the pH is found to be less than 7.4, so anything less than 7.4 is acidosis and anything more than 7.4 is alkalosis. अब अगर आप किसी पेशेंट में देखते हैं कि अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू लुक एट वुड बी द फर्स्ट थिंग. अगर आप एबीजीज देख रहे हो या एसिड बेस प्रोफाइल देख रहे हो तो पहली चीज जो आपने देखनी है वो है पीएच. अगर पीएच 7.4 है तो इट इज नॉर्मल पीएच, बट इफ इट इज लेस देन 7.4 एसिडोसिस. द सेकंड थिंग दैट आई लुक फॉर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट. अगर बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन 24 से कम है, then it is metabolic acidosis. Let me repeat again. If the pH is less than 7.4, acidosis. अब अगर acidosis identify हो जाता है तो अगली चीज हमने क्या देखनी है, bicarb की concentration. If the concentration of bicarb is less than 24, then we call it metabolic acidosis. And try to understand this. देखें, अगर bicarb की concentration body में कम हो जाती है, सो बाय डिफॉल्ट इट मींस कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा. हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि पीएच क्या हो जाएगी, कम. और ऐसी सिचुएशन को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एसिडोसिस. तो ऐसा एसिडोसिस जो बाइकार्ब की डेफिशिएंसी की वजह से है. बाइकार्ब कैन बी लॉस्ट बाय द बॉडी इन सेवरल फॉर्म्स, सच एज डायरिया में, सच एज वॉमिटिंग में, द बाइकार्बोनेट इज लॉस्ट. सो इफ द बाइकार्ब कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 24, it is called metabolic acidosis. ठीक है, तो ये डेफिनेशन पहले तो ये समझ लें. You should be very clear in your head that what do we mean by metabolic. ये 4-5 टर्म्स हैं जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, इसको अच्छे से आपको समझना है. So the number one terminology is what is मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो ये समझ में आ गया बात. अब चूंकि इसके नाम में एसिडोसिस है तो जाहिर है पीएच 7.4 से कम होगी. मेटाबॉलिक का मतलब ये है कि बाइकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन 24 से कम होगी. इफ दिस इज द सिचुएशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और फिर बॉडी क्या करती है वो मैं बताता हूं, पहले टर्म्स डिफाइन कर लें. द सेकंड टर्मिनोलॉजी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब ये है कि एनी सिचुएशन जिसमें व्हाट हैपेंस कि बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, विच मीन्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड. अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो आपको इक्वेशन याद है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर, they produce carbonic acid. Carbonic acid breaks down into hydrogen ion and bicarb ion. So you can see because there is more and more hydrogen ion being produced, more and more acidic environment. So कोई भी सिचुएशन, एम्फाइसीमा है फॉर एग्जाम्पल, एम्फाइसीमा में देयर विल बी लंग प्रॉब्लम, कार्बन डाइऑक्साइड नॉट being released out of the body accumulates in the body. If it accumulates in the body, the partial pressure of carbon dioxide increases and acidosis happen क्योंकि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच ऑब्वियसली क्या होगी, कम. पीएच कम होगी, उसको एसिडोसिस बोलते हैं ना, 7.4 से कम. लेकिन यहाँ पे कॉज डिफरेंट है. यहाँ बाइकार्बोनेट गायब नहीं हुआ बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है. और अगर कार्बन
कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए मोर देन 40 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिडोसिस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. सो ये दोनों टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एसिडोसिस अगर बायकार्ब की कमी की वजह से हो रहा है देन दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और अगर एसिडोसिस कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से हो रहा है देन दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. सिमिलरली जो अल्कलोसिस है, दिस कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम. सो टर्म नंबर 3 इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है तो पीएच मोर देन 7.4 होगी. मेटाबॉलिक का मतलब बायकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. बायकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी. हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब यह है कि पीएच बढ़ जाएगी. पीएच बढ़ेगी, उसी को तो हम अल्कलोसिस कहते हैं. और यहां पीएच बढ़ रही है बिकॉज बायकार्ब बढ़ रहा है. तो बायकार्ब अगर बढ़ेगा, सो बायकार्ब मोर देन 24, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. अब आइए रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस पे. थिंक ऑफ अ कंडीशन जिसमें देयर इज हाइपर वेंटिलेशन. इफ देयर इज हाइपर वेंटिलेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि मोर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल. जब मोर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगी तो लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी. लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी का मतलब ये है कि लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और जब लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा या लेस कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो इक्वेशन आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर, दे प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड. Carbonic acid is then broken down into hydrogen and bicarb, and when there is less carbon dioxide, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा to compensate for the less carbon dioxide. यानी हाइड्रोजन कंज्यूम होगा. हाइड्रोजन कंज्यूम का मतलब हाइड्रोजन कम होगा. हाइड्रोजन कम का मतलब पीएच क्या होगा, बढ़ेगा. पीएच बढ़ेगा, इसी को तो अल्कलोसिस कहते हैं. लेकिन ये जो अल्कलोसिस है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द increase in bicarb. This alkalosis is because carbon dioxide is gone, and carbon dioxide is gone because of respiratory problem. So if carbon dioxide partial pressure is less than 40 because of there is any respiratory problem, this is called respiratory alkalosis. तो ये चार terms बिल्कुल crystal clear होनी चाहिए. What is metabolic acidosis, what is respiratory acidosis, what is metabolic alkalosis, and what is respiratory alkalosis. Now once you have a very good concept of these four terminologies, now you should be able to identify what is the correction mechanism. How does the body respond for correcting these values? So let us now pick up metabolic acidosis as the first case, और इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी का कॉम्पनसेशन क्या है. Remember what was metabolic acidosis? Let me first draw the equation जो हमने कई दफा डिस्कस की है. Carbon dioxide with water produces carbonic acid, and carbonic acid dissociates into hydrogen ion and bicarb ion. So now you tell me what was the definition of metabolic acidosis? Metabolic acidosis में what was happening कि बायकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली कम हो रही थी, लेस देन 24 मिली इक्विवेलेंट्स. और चूंकि बायकार्ब की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही थी, ज्यादा. अच्छा, ये जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, इट विल डू टू थिंग्स. नंबर वन, इट विल स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर, और रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं दे विल स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर रेस्पिरेशन, यानी वेंटिलेशन बढ़ जाएगी. जब वेंटिलेशन बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से ज्यादा एक्सहेल आउट होगी, और अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज. दिस is one thing that the acidosis will do. So acidosis will hyperventilation को stimulate करेगी acidosis, और partial pressure of carbon dioxide will go more less than the normal value, less than 40. This is one thing. The other thing is चूंकि हाइड्रोजन ज्यादा हो गया है, द रिएक्शन विल गो इन दिस डायरेक्शन एनीवेज. ज्यादा हाइड्रोजन है तो ज्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा, ज्यादा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जितना ज्यादा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से उतना ज्यादा एक्सहेल आउट होगा. सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ acidosis which is because of bicarb reduction. यानी metabolic acidosis में respiration fast हो जाएगी, hyperventilation होगी, और उस hyperventilation की वजह से partial pressure of carbon dioxide drop करेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा carbon dioxide body से निकलेगी. So this is why it is written here कि metabolic acidosis में there will be respiratory compensation and partial pressure of carbon dioxide will drop down. ठीक है? So is this very clear to all of you? Now if there is respiratory acidosis, what was the problem in respiratory acidosis, by the way? The problem in respiratory acidosis was the fact that there is some problem with the respiratory system, और उस respiratory system में problem की वजह से what was happening? Carbon dioxide was accumulating in the body. So carbon dioxide is accumulating in the body because there is, say for example,
hypoventilation, such as for example in emphysema. अब ये जो carbon dioxide accumulate कर रहा है body में, it will combine with water and produce more and more carbonic acid, and once more and more carbonic acid is produced, more and more hydrogen ion will be produced. So this will lead to acidosis, increased hydrogen, because there is increased carbon dioxide. So what will now happen, that because there is increased hydrogen, this hydrogen will be secreted more in the urine, और जब ये हाइड्रोजन यूरिन में आ जाएगा तो ये यूरिन में सिक्रीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा. जितना हाइड्रोजन यूरिन में सिक्रीट होगा उतना बाइकार्ब बॉडी में रीअब्सॉर्ब होगा. दिस इज थिंग नंबर वन. थिंग नंबर टू इज, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल, more and more hydrogen will bind to the phosphate buffer system, more and more hydrogen will bind to the ammonia buffer system, and new bicarbonate will be produced. So basically respiratory acidosis की वजह से there will be more and more bicarbonate reabsorbed into the blood, and therefore you see कि respiratory acidosis की जो compensation है वो renal compensation है by increasing more and more bicarbonate. So more than 24, more than normal bicarb is recruited into the blood. और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा bicarbonate body में आएगा, ultimately उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि it will come and buffer this increased hydrogen, because respiratory acidosis में ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी ना, तो अब बॉडी ने रिस्पॉन्ड ये किया कि किडनी ने ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब किया, और वो बाइकार्बोनेट आकर के हाइड्रोजन के साथ बाइंड होगा ताकि इस हाइड्रोजन के बढ़ते हुए लेवल को कंट्रोल में लाया जा सके. सो यू सी हाउ योर बॉडी इज वर्किंग. इफ देयर इज मेटाबॉलिक acidosis, then hyperventilation happens and partial pressure of carbon dioxide goes down. So metabolic acidosis में respiratory compensation हो रही है, और respiratory acidosis में renal compensation हो रही है, bicarbonate absorb हो रहा है, concentration of bicarbonate is increasing, and the opposite scenarios happen in alkalosis. So for example, if there is metabolic alkalosis, so word metabolic alkalosis means more and more bicarb. So when we mean more and more bicarb, so let me draw the diagram here again. So we know that carbon dioxide combines with water, produces bicarbonic acid, carbonic acid, which breaks up into hydrogen ion and bicarbonate ion. So metabolic alkalosis. What is metabolic alkalosis by definition? Metabolic alkalosis is increased bicarb. So if there is increased bicarb, what will happen? Increased bicarb will get the reaction in this particular direction. When the reaction goes in this particular direction, what will happen next? So increased bicarbonate concentration by default means कि decrease hydrogen ion concentration. अब अगर decrease hydrogen ion concentration है, so what will happen कि the carbon dioxide will try to combine more with वाटर, ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन बन सके, ताकि कॉन्सेंट्रेशन को रिवर्ट किया जा सके टुवर्ड्स नॉर्म. सो बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, वी नीड मोर एंड मोर रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बोनिक एसिड बने और ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन बने, ताकि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन जो इनिशियल इंसल्ट थी जिसमें हाइड्रोजन आयन कम हुआ था बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक अल्किलोसिस, वो हाइड्रोजन आयन दोबारा अपने नॉर्मल वैल्यूज पर आए. अब कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा रखने के लिए व्हाट the respiratory system will do? Respiratory system will start hypoventilating. जब वो hypoventilate करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की concentration बॉडी में बढ़ जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की concentration बढ़ने का मतलब ये है कि the partial pressure of carbon dioxide will also increase, and this increase of carbon dioxide will take the reaction in forward direction ताकि हाइड्रोजन आयन बन सके. So therefore metabolic alkalosis में respiratory compensation ये होती है कि it goes into hypoventilation ताकि partial pressure of carbon dioxide बढ़ जाए from the normal baseline 40 millimeters. Okay. Similarly, अगर हम बात करें respiratory alkalosis की, so what do we actually mean by respiratory alkalosis? Respiratory alkalosis means कि there is less carbon dioxide. When there is less carbon dioxide, that would mean that obviously there will be as a result less hydrogen, and when there is less hydrogen, that means alkalosis. Carbon dioxide less होने से hydrogen less हो रहा है. So what will happen? Renal compensation क्या होगा? Renal compensation ये होगा
कि बाइकार्बोनेट जो किडनी बार बार रीएब्जॉर्ब कर रही थी, अब वो उसको रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसलिए रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि अंदर ऑलरेडी बाइकार्ब बढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन कम होने का मतलब क्या है? बाय डेफिनेशन कि बाइकार्ब रेज हो जाएगा, तो वो किडनी से बाइकार्ब रीअब्सॉर्ब नहीं होगा और बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। सो व्हेन दिस विल हैपन, व्हाट विल हैपन इनसाइड द ब्लड? इनसाइड द ब्लड द concentration of bicarb will start going down. So this is one thing which will happen. The other thing which will happen, that kidney will start reabsorbing more and more hydrogen, या ऐसे कह लें कि it stops secreting hydrogen. तो हाइड्रोजन जब secrete नहीं होगा, यानी यूरिन में लूज नहीं होगा, तो हाइड्रोजन आयन concentration is going to improve and also बाइकार्बोनेट को excrete किया जा रहा है. So बाइकार्बोनेट excrete होने से बाइकार्बोनेट की concentration बढ़ेगी नहीं and the whole balance will be shifted in favor of returning the pH to the normal pH. So ये जो पूरी डायग्राम है ना, it looks a little complicated. The discussion looks a little confusing. It sounds a little complicated. But जो मेरा last bit है इस वीडियो का, इसको ज़रा आपने बार बार सुनना है कि 4 तरह की disorders क्या हैं. एक्चुअली 2 तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एसिडोसिस और अल्कलोसिस, लेकिन हर एक फिर या तो मेटाबॉलिक कैटेगरी का है या रेस्पिरेटरी कैटेगरी का है, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. आपको इनकी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मैं बता चुका हूं. फिर उसकी रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन क्या है, हर एक की डेफिनेशन और उसकी काउंटर पार्ट कॉम्पनसेशन. अब इन रियल लाइफ जब आप पेशेंट देख रहे होते हैं तो क्लियर कट बाजों का सिनेरियोज नहीं होते. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो और रेस्पिरेटरी उसको बिल्कुल एसिडोसिस ना हो, और सिर्फ रीनल कॉम्पनसेशन हो या रेस्पिरेटरी. सो देयर इज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट कॉजेज एंड अ मिक्स ऑफ डिफरेंट कॉम्पनसेशन. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन रियल लाइफ. हाउएवर एग्जाम्स में अगर आपसे वो बात करते हैं तो दे गिव यू एग्जैक्ट डिटेल. वो बुकिश डिटेल होती हैं ताकि एग्जाम में कोई मिक्सिंग नहीं करते, ताकि आप इजीली केस को आइडेंटिफाई कर लें. दे वांट टू टेस्ट कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं. सो दे विल क्लियरली टेल यू इफ देयर इज अ केस वेयर pH is less than 7.4 so that you can diagnose acidosis. Then they will clearly tell you कि जो बाइकार्बोनेट है वो less than 24 है so that you can diagnose metabolic. और अगर वो आपको partial pressure of carbon dioxide more than 40 बता रहे हैं, so they want you to diagnose this is respiratory acidosis. और फिर उनकी compensations क्या होंगी. ठीक है. So that's all about this chapter. जो पैथोलॉजिक इसमें वेरिएंट्स हैं वो मैंने अभी छोड़ दिए हैं डिस्कशन. ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है. ये पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे कि रीनल फेलियर में क्या होता है एंड व्हाट हैपेंस इन द पैथोलॉजी विद द हैंडलिंग ऑफ अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस. बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ एसिड बेस्ड रेगुलेशन. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आपसे मुलाकात होगी रीनल मॉड्यूल के आखिरी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में, विच इज अबाउट द डायोरेटिक्स. सो टिल देन अपना ख्याल रखिएगा.